India was the most economically developed country in the world during 17th century, as it contributed 27% to the world's GDP. When Britishers left India after 200 years of subjugation, loot, plunder and war, India's economy became one of the most backward economy in the world. It now contributed only around 2 to 3% to the world's GDP, and it had a literacy rate around 15%. It not only got divided into two countries of Pakistan and India, but it experienced 200 years of moral and cultural subjugation. Prime Minister Narendra Modi ji, while delivering Ramnath Goenka Memorial Lecture in 2025, rightly requested Indian citizens to get rid of Mokle's ghost and become proud of our own culture, food, dance, society, etc. नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौरव है और आप देख रहे हैं बार्क, योर ओन यूट्यूब चैनल. In this lecture, we are going to study about the arrival of Portuguese in India, as it was the first European to come to arrive in India. And it is very interesting, and you will be very surprised to know that Portuguese were the last to leave India. When did they arrive? When did they leave India? What all did they do to India? What policies were brought by them in India? What wars were fought by them in India? What factories were established by them in India? In what all commodities were they trading in India? And most importantly, why did they come to India at the first place itself? We are all going to get the answer of each and every question regarding Portuguese arrival to India, and then when they left, what all did they do in India. So let's start the lecture, and this lecture is almost like the first chapter of modern history. Before we delve into the study of modern history, one thing I would like you all to remember, that in the last lecture we study about, which was a just introductory lecture to history. इसमें हमने पढ़ा था, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, या मॉडर्न हिस्ट्री की कालखंड कब शुरू होती है. हमने पढ़ा था कि एंशिएंट हिस्ट्री, सबसे पहले भारत में जो इतिहास है उसको एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, फिर मेडिएवल हिस्ट्री कहते हैं, एंड देन वी से दैट मॉडर्न हिस्ट्री. और वहाँ पर हमने बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग हम बोल सकते हैं कि 1757, या कुछ लोग 1707 को भी मानते हैं, पर 1757 भी माने या 1707 भी माने, तो ये टाइम है जब मॉडर्न हिस्ट्री भारत में शुरू हुआ. और आज हम देखेंगे कि जो पोर्तुगीज है वो भारत में पहली बार 1498 में आए, 1498 में आए, यानी ये 1500 के पहले है. भारत में आप जानते होंगे, इससे पहले अगर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि मुगल एम्पायर जो बना भारत में वो 1526 में बना. बाबर 1526 में भारत में मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी की स्थापना रखता है. यानी जब पोर्तुगीज भारत में आए उस समय मुगल एम्पायर भी नहीं बनाए भारत में. यानी हम नहीं कह सकते हैं कि व्हेन यूरोपियंस अराइव्ड फर्स्ट इन इंडिया through the sea route, or when Portuguese arrived for the first time in India through the sea route, direct sea route, this cannot be called as the starting of modern period. इसको हम मॉडर्न पीरियड के स्टार्टिंग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न पीरियड के स्टार्टिंग बहुत बाद हुई. अगर इसको हम मॉडर्न पीरियड के स्टार्टिंग मान ले तो जब मुगल एम्पायर बनता है, पूरा मुगल पीरियड, वो मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा, जो कि गलत होगा. It simply means that when Portuguese first came to India through the direct sea route discovered by them, it can be called as a beginning of new era, but it cannot be called as a starting of the modern period. मॉडर्न पीरियड के स्टार्टिंग तो नहीं कहा जा सकता है, पर इसको हम ये मान सकते हैं कि उनके आने से एक नया एरा की शुरुआत हुई, क्योंकि भारत की जो कल्चर में, भारत की जो सोसाइटी में, भारत की जो पॉलिटी में बदलाव हुआ वो अभूतपूर्व बदलाव था. इससे पहले ऐसा बदलाव नहीं देखा गया. हालांकि वो सारे बदलाव ऑलमोस्ट फॉर इंडिया इट वाज मेनली निगेटिव, इट वाज ऑलवेज निगेटिव. पर बदलाव इतने ज़्यादा हुए कि एक एरा डिफाइनिंग मोमेंट था जब पोर्तुगीज पहली बार आए. इससे पहले कि हम देखें कि पोर्तुगीज कब आए और वास्को ड गामा अपना नाव लेकर कब चला पुर्तगाल से और भारत की ओर आया, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो यूरोपियंस भारत आए तो हिस्टोरियंस में दो डिबेट है. कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि व्हेन यूरोपियंस केम टू इंडिया या पुर्तगाल केम टू इंडिया, दे हैड ऑलरेडी थॉट दैट दे आर गोइंग टू बिल्ड एन एम्पायर इन इंडिया. तो पहले लोगों को मानना है कि जो यूरोपियन से वो आते के साथ ही सोच लिए थे कि भारत में एम्पायर बनाना है, और दूसरे लोगों को मानना है कि वो एम्पायर बनाने के दृष्टिकोण से भारत नहीं आए, वो ट्रेड करने के दृष्टिकोण से आए. तो यहाँ पर देखिए, अगर वो एम्पायर बनाने के दृष्टिकोण से आते
तो क्या 5 आदमी आने से या सिर्फ वास्को ड गामा को भारत में आने से क्या वो एक एम्पायर बना सकते हैं? जब भारत इतना बड़ा देश है, इतना समृद्ध देश है, इतना पावरफुल शक्ति था उस समय आर्मी का, भारत की जो मुगल आर्मी है कुछ दिन के बाद बनी, उसकी इतनी पावर थी कि वो कभी ये सोच के नहीं आ सकते हैं कि भारत में एम्पायर बनाना है, एम्पायर बनाने के लिए आना है। पर वो आए, शुरू में तो आए क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। लेकिन जब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, जब कार्नेटिक वार्स हुआ और एक छोटी सी फ्रेंच आर्मी ने, मात्र 200 की सेना ने भारत के 10,000 सैनिकों को हरा दिया, तो इससे उसका मनोबल बढ़ा और धीरे धीरे वो भारत में एक एम्पायर बनाने की लालसा उसमें जाग गई। यानी कि शुरू में तो वो क्या है, दे केम ओनली फॉर द ट्रेड पर्पस, बट दे वर ड्रोन इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडियन प्रिंसेस। भारत के राजकुमारों में, भारत के राजाओं में इतनी झड़प होती थी, इतनी लड़ाई होती थी कि वो धीरे धीरे इस पॉलिटिक्स में घुसते गए और फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि भारत में एम्पायर बनाना बहुत ही आसान काम है, यानी कि हमें इसमें मिडिल ग्राउंड लेना है। दे डिड नॉट कम हेयर फॉर द एम्पायर बिल्डिंग एंड दे केम हेयर फॉर ट्रेड, बट दे ऑलवेज डिड नॉट विश ओनली फॉर द ट्रेड। वो पूरी जब तक भारत में रहे, वो सिर्फ ये नहीं सोचे कि हमें सिर्फ ट्रेड करना है। धीरे धीरे उन्होंने उसमें एम्पायर बनने के भी, उसमें यहाँ पर बहुत सारा एरिया कब्जा करने के भी, वो यहाँ बहुत सारा वार लड़ने के भी उसमें धीरे धीरे मनोबल बढ़ा और वो धीरे धीरे एम्पायर बनाने लगे। यानी कि वो ट्रेड करने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे एम्पायर बनाने की एरिया में घुसते चले गए। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमेशा के लिए ट्रेड करते रहे, ये भी नहीं कह सकते हैं कि शुरू से वो एम्पायर बनने के लिए आए। तो ये एक डिबेट है हिस्टोरियंस में, जिसे हमें समझना चाहिए कि इनिशियली दे केम फॉर ट्रेड। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, व्हाई डिड Europeans came to India, the debate among historians. Historians में debate है, and there are two kinds of historians. First, the first kind of historians, yeah, the first group of historians, according to their thinking, according to their जो उनके जो अवलोकना है, उनका जो मानना है, अवलोकन है, उसके हिसाब से ये है कि वो ट्रेड करने के लिए आए और हमेशा ट्रेड करना ही चाहते थे। और दूसरे कहते हैं कि वो एम्पायर बिल्डिंग करने के लिए आए। दोनों गलत है। सही क्या है? जो मिडिल ग्राउंड रखते हैं बहुत सारे हिस्टोरियंस और मैक्सिमम हिस्टोरियंस का मानना ये है कि वो शुरू में ट्रेड करने आए और बाद में धीरे धीरे एम्पायर बनाते चले गए। तो यूरोपियंस केम स्ट्रिक्टली फॉर मनी एंड ट्रेड। देयर मेन जॉब वॉज टू बाईपास ओल्ड रूट्स एंड सेटअप कोस्टल ट्रेडिंग पोस्ट विद द परमिशन ऑफ लोकल रूलर्स। ये सब आगे और समझ में आएगा, सिंपली समझना है कि इनिशियली दे केम ओनली फॉर ट्रेड पर्पस, बट द गोल शिफ्टेड टू कंक्वेस्ट बिकॉज मुगल एम्पायर फेल अपार्ट। मुगल एम्पायर, इतना बड़ा एम्पायर धीरे धीरे जो बना वो धीरे धीरे टूट गया, इससे उसकी शक्ति बहुत कम हो गई और यूरोपियंस का मनोबल बढ़ा कि वो यहाँ एम्पायर बना सकते हैं। ब्रिटिश एंड फ्रेंच राइवलरी मेंट दे हैड टू फाइट फॉर कंट्रोल, और ब्रिटिश और फ्रेंच में जो लड़ाई हुआ उससे भी वो कंट्रोल करने की बात करने लगे। सो ट्रेड प्रोटेक्शन क्विकली बिकेम एम्पायर बिल्डिंग। वो जो ट्रेड करने, प्रोटेक्ट करने की बात की शुरू में, वो एम्पायर बिल्डिंग में बदल गया। यानी आए तो ट्रेड करने के लिए, पर धीरे धीरे एक एम्पायर बनाने की और धीरे धीरे चलते चले गए। ठीक है, अब हमें देखना है, ये तो समझ में आ गया होगा कि यूरोपियंस पहली बार आए भारत में, तो उनका पूरी तरह से इच्छा थी ट्रेड करने का, उनका पूरी तरह से इच्छा था कि वो यहाँ आकर व्यापार करे। पर भारत की जो स्थिति थी, भारत के जो राजकुमारों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, भारत की जो सामाजिक कंडीशन थी, ये सब को देखते हुए उसमें एक इच्छा हुई, उसमें एक मनोबल आई, उसमें एक कॉन्फिडेंस आया, उसमें एक मोटिवेशन आया। वो लगातार इस बात को लेकर सोचने लगे कि कैसे वो भारत में धीरे धीरे एम्पायर भी बना सकते हैं। और भारत में कोई भी राजा को हराना कितना आसान है, क्योंकि यहाँ का सैनिक डिसिप्लिन नहीं है और बहुत पुराने हथियारों से युद्ध करते थे। इसकी वजह से वो धीरे धीरे यहाँ अंपायर बनाने की ओर चलते चले गए। अब दूसरा जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ ए सी रूट टू इंडिया। क्वेस्ट मतलब हुआ कि किस तरीका से उन्होंने डिस्कवरी की, मतलब कैसे उसमें इच्छा जागी, क्यों आखिरकार वो एक क्वेस्ट मतलब कैसे उसमें एक इच्छा जागी, क्यों वो भारत की ओर ही एक ट्रेड करना चाहते थे, भारत की ओर एक सी रूट को क्यों खोजना चाहते थे। क्या इससे पहले यूरोपियंस भारत कभी नहीं आए थे? क्या भारत में कुछ ऐसी विशेष चीज़ थी जिसके कारण से वो भारत आना चाहते थे? ये सब इसमें देखना है। तो इसको देखें, इससे पहले हमें ये देखना है कि देखिए ये मैप है, ये आपको जो यहाँ दिख रहा है ये है पुर्तगाल, ये देश है, ये है पुर्तगाल देश, यही देश है पुर्तगाल। ठीक है, ये पुर्तगाल देश है। इसके नीचे जो दिख रहा है ये स्पेन देश है। ठीक है, ये स्पेन देश है। ये जो पूरा ये जो सी दिख रहा है ऐसा करके जो सी दिख रहा है इसी को मेडिटेरेनियन ओशियन बोलते हैं। है सी बोलते ओशियन है, तो मेडिटेरेनियन सी या मेडिटेरेनियन ओशियन ये है, तो मेडिटेरेनियन है, मेडिटेरेनियन है। ठीक है, ये सब लोकेशन पता रहना चाहिए ताकि आगे समझने में बहुत आसान हो। ये जो है ये देखिए आप रेड सी है, इसके बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, रेड सी है। ये देखिए पर्शियन गल्फ है, इसी को क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ बोलते हैं, पर्शियन। और ये हमारी भारत माता, यहाँ पर भारत माता की थोड़ा सा ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये गुजरात देखिए दिख रहा है, हमारा खूबसूरत शहर गुजरात, खूबसूरत राज्य। तो ये यहाँ है जो भारत है। तो ये पुर्तगाल है,
और यहाँ से ही आए और यहाँ आए। तो इससे पहले कि क्यों आए ये तो आप जानते होंगे कि देयर वाज ऑलरेडी ए रूट डिस्कवर्ड, या देयर वाज ऑलरेडी मेनी रूट्स फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। ये देखिए यहाँ भारत है, यहाँ से जो चाइना है इस तरफ से सिल्क रूट भी जाता था, इस तरफ सिल्क रूट से भी यूरोप जाता था सामान, तो इसको सिल्क रूट कहते हैं। और इससे भारत ऑलरेडी कनेक्टेड था। कनिष्क अगर आप पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, सो बिकॉज कनिष्का वाज द रूलर ऑफ कश्मीर, सो ही अर्नड ए लॉट ऑफ प्रॉफिट थ्रू द सिल्क रूट, तो उसको भी बहुत फायदा हुआ। ग्रीक का हम लोग जानते हैं कि गुप्ता पीरियड के समय ग्रीक से भी हमारी बहुत पुरानी दोस्ती रही है। और फिर आप जानते होंगे कि ये जो ग्रीस है, यहाँ देखिए ये ग्रीस वाला पार्ट है, यहाँ से अलेक्जेंडर की सेना आई थी और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई भी हुई थी। ये सब आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो यूरोपियन हैं, ये यूरोपियन पहली बार भारत नहीं आ रहे थे, यानी कि जो सी रूट, ये जो लैंड रूट है भारत और यूरोप के बीच में, इट ऑलरेडी एग्जिस्टेड। एक रूट तो ये थी। दूसरी रूट देखिए भारत से ऐसे जा सकते हैं, यहाँ से भारत जाएंगे और यहाँ से ये रेड सी होते हुए ये जो देश दिख रहा है ये है इजिप्ट, इजिप्ट होते हुए फिर यहाँ मेडिटेरेनियन सी होते हुए यूरोप के लिए सामान जाएगा, ये भी एक रूट है। तीसरा रूट देखिए, यहाँ भारत से जाएंगे, ये पर्सियन गल्फ होते हुए ये ईरान है, और ईरान से होकर यहाँ से फिर से यूरोप की ओर जाया जा सकता है। दीज रूट्स वर ऑलरेडी नोन टू यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। ये रूट उन्हें मालूम था, पर इन रूट में क्या समस्या हुई कि 6th सेंचुरी में ही, यानी बहुत पहले ही 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी में ही, ये जो इजिप्ट का एरिया दिख रहा है यहाँ पर मुस्लिम का कंट्रोल आ गया। यानी 6th सेंचुरी ने, उससे कुछ दिनों के बाद मुस्लिम का, जब मुस्लिम रूल फैलने लगा, यानी कि जब मुस्लिम का, जब इस्लाम का विकास हुआ, और इस्लाम के विकास के बाद जो अरब्स हैं उन्होंने ये एरिया को कंट्रोल कर लिया। या इस्लाम से पहले भी जो अरब्स हैं उन्होंने ये एरिया कंट्रोल कर लिया, यानी बहुत पहले, हज़ारों साल पहले ये एरिया को कंट्रोल कर लिया अरब्स ने। धीरे धीरे ये पर्सिया जो आपको दिख रहा है, पर्सिया जो आज का ईरान है, ये देखिए ईरान है, यहाँ भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, फिर ईरान है, ये एरिया को कंट्रोल कर लिया कौन? अरब। और फाइनली 1453 में, आगे देखेंगे 1453 में पढ़ेंगे आगे, 1453 में क्या हुआ कि ये जो टर्की का एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है ये टर्की का एरिया, ये ओटोमन टर्क्स के अंदर चला गया। ये भी एक एरिया था जो इस्लाम के अंदर, मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम राजा के अंदर चला गया। यानी कि आप देखिए, अगर आपको यहाँ से भी जाना हो तो आपको टर्क से या अरब से पास करना होगा, यानी धीरे धीरे ये भी इस्लाम के कंट्रोल में था, मुस्लिम के कंट्रोल में था। अगर यहाँ से जाना हो तो ये भी एरिया किसके अंदर है? मुस्लिम के अंदर है। और अगर आपको डायरेक्ट लैंड रूट भी जाना हो तो किसके थ्रू जाना पड़ेगा? मुस्लिम इंटरमीडियरीज के थ्रू जाना पड़ेगा। एंड वी ऑलरेडी नो, या आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा या आप सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि देयर वाज कंटिन्यूअस होली वार बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। ये जो क्रिश्चियन एरिया था, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड दिख रहे हैं, ये जो यूरोप दिख रहे हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन डोमिनेटेड किंग्स थे, क्रिश्चियंस थे, ये क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया है। और यहाँ पर इस्लामिक रूलर्स थे, एंड दे फाउट अमंगस्ट ईच अदर मेनी होली वार्स। इसके बीच में पहले ही बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं। एंड नाउ दिस ऑल एरियाज आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मुस्लिम्स। ये जो एरिया, पूरा एरिया है, चाहे वह इजिप्ट की एरिया हो, चाहे वह पर्सिया की एरिया हो, ये है पर्सिया की एरिया, चाहे वो ओटोमन की एरिया हो, ये पूरा एरिया मुस्लिम्स कंट्रोल कर रहे हैं। एंड द ट्रेड ऑफ इंडिया, द गुड्स ऑफ इंडिया विल हैव टू ट्रेवल थ्रू मुस्लिम इंटरमीडियरीज इन ऑर्डर टू रीच टू यूरोप। यूरोप जाने के लिए इनको पास करना पड़ेगा। अगर इनके थ्रू जाएंगे तो क्या ये बहुत सारे टैक्स लेंगे? अगर ये टैक्स लेंगे तो पहली बात, इस टैक्स से क्या होगा? इस टैक्स से जो गुड्स भारत से जा रहा है इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी। दूसरा क्या होगा, इससे जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम्स किंग्स एंड डायनेस्टी हैं, इसकी जो अर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मुस्लिम्स ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो दे विल यूज़ दिस मनी टू फाइट वार अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियंस लोग हैं, जो यूरोपियंस लोग हैं, उसके खिलाफ क्या करेंगे? ये वार में और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ये दिक्कत है कि क्रिश्चियंस के खिलाफ वार शुरू हो जाएगा, और गुड्स का प्राइस बढ़ने से और जो यूरोपियंस हैं उसको दिक्कत होगा। यही जो रूट था, इसको बाईपास करने के लिए यूरोपियंस वर थिंकिंग दैट दे नीड टू फाइंड ए डायरेक्ट ओशियन रूट टू इंडिया। शायद आप समझे होंगे, क्या समझे कि सबसे पहले ये जो इजिप्ट एरिया है ये अरब्स के अंदर चला गया, ये पर्सियन का जो जगह है ये भी अरब्स के अंदर चला गया। धीरे धीरे 1453 में एक और घटना, बहुत बड़ी घटना घटी कि ये पूरा एरिया ओटोमन टर्क्स के अंदर चला गया। ये जब ओटोमन टर्क्स के अंदर चला गया तो एनी गुड्स फ्रॉम इंडिया विल हैव टू पास थ्रू दीज इंटरमीडियरीज, बिकॉज ऑफ विच द प्राइसेस ऑफ द गुड्स इंक्रीज्ड, and also the Muslims would earn a lot of profit, and they would use this money to fight wars against the western world, against the Europe। और यूरोपियंस को ये पसंद नहीं थी। इसके वजह से क्या हुआ कि यूरोपियंस वर थिंकिंग that they need to find a direct sea route to India so that they can bypass these intermediaries। इनको पास करने के लिए, ये मुस्लिम इंटरमीडियरीज को पास करने के लिए वो एक डायरेक्ट सी रूट इंडिया की तरफ खोजना चाहते थे। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है कि हजारों साल पहले से भारत और यूरोप में व्यापार चलते आ रहा था।
और यूरोपियंस पहले से जानते थे भारत कहाँ है, यूरोपियंस पहले से जानते थे भारत जाने की रूट क्या है, पर उन्हें यह पता नहीं था कि क्या हुआ कि उनके रूट के बीच में मुस्लिम्स आ गए और मुस्लिम इंटरमीडियरीज होने के कारण वो चाहते थे एक डायरेक्ट सी रूट खोजने के लिए, और इसलिए वास्को ड गामा यहाँ पुर्तगाल से पहले और पहले उससे भी पहले बहुत लोग ट्राई किए, और इस तरह से ये जो केप ऑफ गुड होप है, ये जो केप ऑफ गुड होप है, यहाँ देखिए यहाँ से और इस तरह से भारत की ओर आए। समझ गए आप, ये सिंपल बात है। अब इसको देखिए, पढ़ते हैं और एक एक बात को समझते हैं। यही सब चीज़ लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे कारण थे क्यों यूरोपियंस आए। पहला कारण तो हमने बताया कि दे नीडेड टू बाईपास मुस्लिम इंटरमीडियरीज। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या बताऊं, दूसरी बात ये है, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी बात ये हुई कि यूरोप में एक पीरियड आया, जो यूरोप है ये पूरा यूरोप में एक पीरियड आया जिसे बोलते हैं रेनेसां का पीरियड। रेनेसां स्पेलिंग कुछ और होता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, यानी इसको बोलते हैं पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण का मतलब होता है कि दोबारा जागना। दोबारा जागना का मतलब होता है कि ये दोबारा अपने समाज में एक विचार लाए, जो अंधकार था समाज में फैला हुआ वो उनको ख़त्म किया, जो अंधविश्वास था उसको ख़त्म किया। जैसे कि यहाँ अंधविश्वास यूरोप में जो मिडिल फेज माना जाता है 500 से 1500 साल के बीच में, वहाँ माना जाता है कि जो चर्च बोलते थे वही करना पड़ता था। वहाँ पर चर्च का मानना था कि पृथ्वी के चारों तरफ सब ग्रह घूमती है। अगर किसी ने बोल दिया कि पृथ्वी के चारों तरफ नहीं सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसका गला काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या था कि बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। तो जब रेनेसां का पीरियड आया और पूर्ण जागरण का पीरियड आया, उसके बाद से यूरोप में एक नया साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, नया साइंस में भी डेवलप हुआ, सभी समाज के सभी सब्जेक्ट्स में डेवलप हुआ, चाहे कल्चर हो, आर्ट हो। जैसे कि लियोनार्डो डा विंची का नाम सुनते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ रेनेसां पीरियड। रेनेसां के बाद ही इतने महान महान साइंटिस्ट आए और सब आर्टिस्ट लोग भी आए। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ। इस साइंटिफिक डेवलपमेंट में क्या हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट पहली बार तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक इक्विपमेंट का बनाया जिससे कि इतनी दूर की समुद्री यात्रा करना संभव हुआ। फॉर एग्जाम्पल दे डिस्कवर्ड कंपास, जो कंपास होता है जिससे डायरेक्शन पता चलता है, इसने बनाया। जैसे कि अब जो शिप बिल्डिंग की प्रोसेस थी वो बहुत अच्छी हो गई, यानी कि बहुत मजबूत शिप बनने लगा, जिससे कि इतना दूर का जो ओशियनिक रूट है उसके थ्रू आया जा सके। तो शिप बिल्डिंग ऑल्सो हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इससे एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर में कैसा डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर में इस तरह डेवलपमेंट हुआ कि जो एरिया पहले से एग्रीकल्चर में नहीं था उसको भी खेती में लाया गया, यानी कि बहुत सारे नए एरिया को खेती में लाया गया। दूसरी बात क्या हुआ कि इन्होंने क्रॉप या मिक्स्ड फ्रेमिंग करने लगे, मिक्स्ड फार्मिंग करने लगे, मिक्स्ड फार्मिंग करने लगे, इंटर क्रॉपिंग करने लगे, यानी दो क्रॉप को एक साथ उगाने लगे। जानवरों में वृद्धि हुई, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग करने लगे, मिक्स्ड फार्मिंग करने लगे। इन्होंने नए एरिया को, न्यू एरिया को एग्रीकल्चर में लाए, और साथ में क्या किए कि इससे एनिमल्स की बहुत ज़्यादा एनिमल्स की भी संख्या बढ़ी, यानी बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी हो गया। अब एनिमल्स बढ़ा तो इससे क्या होगा, मीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो इसको क्या चाहिए, इसको फ्रीज चाहिए रखने के लिए। उस समय फ्रीज तो था नहीं, यानी कि इसका प्रिजर्वेशन के लिए भी प्रिजर्वेशन की जरूरत पड़ने लगी। ज़्यादा मीट है तो एक दिन में नहीं खा सकता है, प्रिजर्व करना पड़ेगा। इसके लिए क्या इन्होंने, इसके पास टेक्निक था कि ब्लैक पेपर का यूज करना। जो हमारे पास मसाला ब्लैक पेपर होता है जिसको गोलकी कहते हैं बिहार में, ये ब्लैक पेपर से जो मीट है वो लगभग 6 महीना तक इसको अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है। दूसरी बात, ये मीट को टेस्टी बनाने के लिए भी ब्लैक पेपर बहुत जरूरी है। यानी कि आप अगर मीट बनाइएगा और उसमें गोलकी नहीं दीजिएगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो उसको टेस्टी बनाने के लिए भी क्या करने लगा, ब्लैक पेपर देने लगा। ब्लैक पेपर का यूज हुआ यही मसाला का खोज के लिए, यही मसाला के ट्रेड के लिए। क्योंकि अभी ये मसाला अगर जब इंडिया से जाएगा लैंड रूट से, और दे विल पास थ्रू दीज ऑटोमन टर्क्स, दीज अरब्स, देन दे वुड चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, एंड दीज मसाला, दीज ब्लैक पेपर्स व्हेन दे विल रीच टू द सोर्स ऑफ द यूरोप, जब वो यूरोप पहुंचेंगे देन दे वुड बी हाईली कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहेगा। इसी को बाईपास करने के लिए वो क्या किए, इंडिया में खोजने लगे। दूसरी बात, यहाँ पर एग्रीकल्चर बढ़ा, शिप बिल्डिंग बढ़ा, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, तो क्या वहाँ पर रिचनेस बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और जब अमीर हो जाएंगे, उस समय सोने की चिड़िया कौन सा देश है, हमारा भारत है। उस समय देश की, दुनिया की सबसे अच्छी वस्तुओं का निर्माण कहाँ हो रहा है, भारत में निर्माण हो रहा है। उस समय का जो मुस्लिम क्लोथ्स है, जो बांग्लादेश में फेमस मुस्लिम क्लोथ्स था, उसका निर्माण कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। उस समय जो कैलिकोस था, जो कॉटन वाइट क्लोथ होता था जिसपे कलर नहीं रहता था, जो बहुत महंगा बिकता था, वो कहाँ बनता था, भारत में बिकता था। तो ये सब लाने के लिए जो रिचनेस बढ़ा, तो इससे ओरिएंटल गुड्स का डिमांड भी बढ़ा। ओरिएंटल गुड्स मतलब, ओरिएंटल मतलब होता है द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट, ऑक्सीडेंटल मतलब होता है द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। तो वेस्ट मतलब हुआ ऑक्सीडेंटल, ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न कंट्री। ईस्टर्न कंट्री जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। द कल्चर इज ऑल्सो डिफरेंट हेयर।
सो ओरिएंटल गुड्स का डिमांड बढ़ा जब वहाँ पर अमीरी बढ़ा, तो ये ओरिएंटल गुड्स को लाने के लिए भी उन्होंने क्या करना पड़ा, उनको डायरेक्ट एक ऐसा करके ओशियनिक रूट इंडिया की तरफ खोजना पड़ेगा, अदरवाइज दे वोंट गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। समझ गए होंगे आप शायद, यही करक्स है कि क्या क्यों वो यहाँ आए। और एक बात और है कि जब ये रेनेसां का पीरियड आया और साइंटिफिक डेवलपमेंट आया, तो उनमें एक इच्छा जागी कि चलिए हम पूरा दुनिया घूमते हैं और पता करते हैं कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। इससे पहले ऐसा मानना था कि जो अर्थ है वो एक इस तरह से फ्लैट है। अर्थ अगर फ्लैट है ऐसा कोई माने और यहाँ पर ओशियन है, तो क्या वो नाव लेके इस फ्लैट अर्थ पर चल पाएगा? वो सोचेगा कुछ दूर जाने के बाद गिर जाएंगे, और गिर के कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है, क्योंकि अर्थ फ्लैट है। धीरे धीरे ये पता चला कि अर्थ राउंड है, यानी कि इसमें चारों तरफ चक्कर लगाएंगे कहीं नहीं गिरेंगे। तो ये सब जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, एंड इट ऑल्सो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जो रेनेसां का पीरियड है, इट इंस्टिल ए कॉन्फिडेंस इन यूरोपियंस, उसमें कॉन्फिडेंस दिया, उसमें दुनिया खोजने की एक इच्छा जाहिर। जैसे हम लोग पढ़ते लिखते हैं बाहर में, तो कैसा लगता है कि कभी घूमने के लिए हम लोग यूरोप जाएं, वहाँ का आर्किटेक्चर को देखें, वहाँ का हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, कौन सा राजा कहाँ थे इसको देखने की कोशिश करें। या भारत में भी बहुत जगह हम लोग को घूमने का लगता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो हमें लगता है जैसे ज्योग्राफी में आज हिमालय पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हिमालय में शिमला कहाँ है, कश्मीर कहाँ है, कैसे इतना खूबसूरत है, वहाँ जाने की एक चाहत होगी, एक तीव्र इच्छा होगी। तो इससे भी उनमें क्या है कि एक एक्सप्लोरेशन का जो भावना है, एक एक्सप्लोरेशन करने की जो जिज्ञासा है, उसको जन्म दिया, और इसलिए वो भारत की ओर अपना जो उन्होंने निकल लिया जहाज लेकर। तो देखिए आइए पढ़ते हैं कि द अर्जेंट नीड फॉर ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया वाज ड्रिवन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल ट्रेड रूट्स एंड इमेंस इकोनॉमिक इंसेंटिव। तो ये जो ट्रेडिशनल ट्रेड रूट हैं, जो हमने आपको बताया कि जो शुरू में जाती थी, उनका ब्रेकडाउन हुआ, इसलिए आते थे। क्या रीजन था? पहला है अरब ओटोमन मोनोपोली। मोनोपोली मतलब जो ट्रेड है इस पे इसका मोनोपोली है, बिकॉज ऑल द गुड्स आर पासिंग थ्रू दिस पीपल एंड सो दे हैव मोनोपोलाइज्ड द ट्रेड, दैट मीन्स दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट थ्रू दिस ट्रेड्स, एंड सो द गुड्स आर रीचिंग यूरोप, बट दे आर रीचिंग वेरी कॉस्टली। ठीक है, कैसे हुआ? फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, जब शुरू में 6 सेंचुरी के आसपास रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, द अरब्स इस्टेब्लिश्ड डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्सिया। अभी बताइए इजिप्ट कहाँ है, पर्सिया कहाँ है, और उस पर अरब का डोमिनेशन हो गया। दिस रेस्ट्रिक्टेड यूरोपियन एक्सेस टू प्रॉफिटेबल इंडियन कमोडिटीज लाइक स्पाइसेस, कैलिकोस, सिल्क एंड प्रीशियस स्टोन। स्पाइसेस मतलब आप मसाला समझ गए, ब्लैक पेपर, कार्डमम, और भी बहुत तरह का मसाला होता है, जिसके लिए हमारे साउथ इंडिया, केरल, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत फेमस है। तो वेस्टर्न घाट के बारे में जब पढ़े, उसका लेक्चर लोड किया गया है, तो आप देखिएगा कि वेस्टर्न घाट में क्या है, बहुत सारे स्पाइसेस हैं। उसी तरह केलिकोस है, केलिकोस होता है व्हाइट क्लॉथ, व्हाइट कॉटन क्लॉथ, जैसे हमारे यहाँ धोती होता है, तो जो व्हाइट कॉटन क्लॉथ है, इस पे जब हम कलर नहीं करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, केलिकोस कहते हैं। सिल्क मतलब सिल्क का क्लॉथ हो गया, प्रीशियस स्टोन्स, ऑल दिस कमोडिटीज, व्हेन दिस कमोडिटीज वर रीचिंग थ्रू दिस इंटरमीडियरीज, द प्रॉफिट्स ऑफ द यूरोपियंस डिक्रीज। प्रॉफिट जो यूरोपियंस पहले व्यापार करते थे उसका प्रॉफिट घटा, उसको महंगा सामान बिक रहा है। ये एक प्रॉब्लम था ट्रेड में डिक्लाइन होने का, कि जो ट्रेड इतना अच्छा चल रहा था वो डिक्लाइन हुआ और उसके पास सामान नहीं पहुंच रहा है। दूसरा क्या दिक्कत हुआ? फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये बहुत पहले हो गया, ये 6वीं सेंचुरी में हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल जो जगह है, अभी का जो टर्की है, वहाँ टर्की में एक उसकी जो राजधानी है इस्तानबुल, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं। एंड इवन टिल नाउ इस्तानबुल इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ होल ऑफ यूरोप। जो पूरा यूरोप है, इसकी लार्जेस्ट सिटी कौन है? कॉन्स्टेंटिनोपल ही है। आप यहाँ देखिएगा कि ये जो टर्की है, ये टर्की का एक थोड़ा सा पार्ट इधर भी है, इतना दूर तक है, यहाँ पर ही एक शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड दैट कॉन्स्टेंटिनोपल इज इवन नाउ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वेस्टर्न यूरोप और ऑफ द यूरोप, होल ऑफ यूरोप। पूरा यूरोप का लंदन से भी बड़ा सिटी है। तो आप समझिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, मतलब ओटोमन एम्पायर ने, ओटोमन टर्क ने इसको जीत लिया, तब क्या हुआ? The capture of Constantinople by the Ottoman Turks forced Indian merchandise to pass through Arab Muslim intermediaries. अरब के अंदर चला गया पूरा एरिया, तो अब जो हमारे सामान है वो अरब के थ्रू जाएंगे। This arrangement turned the Red Sea trade route into profitable state monopoly for Islamic rulers, while land routes were also controlled by the Arabs. इससे क्या हुआ? जो यहाँ से जा रही है सामान, जो रेड सी से जा रही है, वो तो ऐसे ही जाएगा। तो ये जब एरिया कॉन्स्टेंटिनोपल जब फॉल हुआ, जब इस पे ओटोमन टर्क्स का कंट्रोल आया, तो ये एरिया भी तो समुद्र वाला एरिया उसी के कंट्रोल में रहेगा। सो नाउ दे वुड मोनोपोलाइज this trade and they would earn huge profit and they would use this money to fight against the Europeans, और उससे उनको और ज़्यादा झटका पहुंचा। इसलिए वो क्या करने लगे कि एक नया रूट खोजना है। दूसरा क्या है? जो यूरोपियन का मोटिवेशन, उनका खुद का रीजन है, जैसे इकोनॉमिक नेसेसिटी क्या है, यूरोपियंस प्रोस्पेरिटी, अमीर बने, इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर ओरिएंटल गुड्स। जो ओरिएंटल गुड्स हैं जो ईस्ट के गुड्स हैं, उसके लिए डिमांड्स बढ़ा, क्योंकि वहाँ अमीरी बढ़ा।
एंड क्रिटिकली स्पाइसेस, और ज़्यादा स्पाइसेस का, विच वर एसेंशियल फॉर कुकिंग एंड प्रिजर्विंग मीट ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड, जैसे कि मीट्स को बहुत लंबा समय तक प्रिजर्व करना पड़ता है, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ बर्फ बहुत गिरता है, ठंडी के दिन में खास करके प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स की संख्या कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत सारा हुआ, जैसे रेनेसां एरा इनकरेज्ड एक्सप्लोरेशन सपोर्टेड बाय मेजर एडवांसेस इन शिप बिल्डिंग, नेविगेशन, ये सब में हुआ, उससे वो सक्सेस कर पाए इतना लंबा सी रूट के लिए। रिलीजियस मिशन, उनका एक और मिशन था कि दे वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी टू द ईस्टर्न वर्ल्ड, जो हमारे कंट्री हैं, हमारे आसपास के देश हैं, यहाँ पर वो क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे, वो पूरा दुनिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे। एंड फॉर दैट ऑल्सो दे वांटेड टू फाइंड ए डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, सो दैट व्हेन द ट्रेड विल बिकम प्रॉफिटेबल, जब ट्रेड आसानी हो जाएगी तो बहुत सारे लोग यूरोप से इंडिया की ओर आएंगे और वो क्रिश्चियनिटी को भी फैलाएंगे। और इसमें एक व्यक्ति था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जो स्पेन का ही पुर्तगाल का ही एक जो राजा था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इन्होंने पूरा कोशिश किया कि किसी तरह से एक डायरेक्ट ट्रेड ओशियन का रूट मिल जाए इंडिया के लिए। मतलब ये इसके पास कुछ काम नहीं था, दिन भर पागल जैसा ये सोचते रहता था कि कैसे एक नया ट्रेड रूट इंडिया की तरफ मिले और इंडिया से डायरेक्ट हम ट्रेड करें, उससे प्रॉफिट कमाएं और साथ में क्रिश्चियनिटी को भी फैलाएं। इसका प्रोत्साहन भी वहाँ के पोप ने किया, लेकिन फिर भी इनके जीते जी तो ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा संभव नहीं हो पाया, बिकॉज दे ऑल वांटेड टू स्प्रेड क्रिश्चियन फेथ एंड दे वांटेड टू स्ट्राइक ए ब्लो अगेंस्ट इस्लामिक पावर, जो इस्लामिक पावर है, क्योंकि वो बहुत पैसा कमा रहे थे तो उसके खिलाफ भी ऐसा था। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर देखिए क्या हुआ, एक ट्रीटी होता है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ तोरदेस्लास, 1494 ईस्वी में एक ट्रीटी होता है। ये ट्रीटी बहुत सिंपल है, आप देखिए यहाँ पर कि ये अगर अफ्रीका है, आप इसको एज्यूम कीजिए कि ये पूरा वर्ल्ड का जो मैप है इस तरह से, तो यहाँ पर अफ्रीका है, यहीं पर एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं आइलैंड, तो ये आइलैंड का नाम है केप वर्दे आइलैंड। क्या नाम है? केप वर्दे आइलैंड। और ये केप वर्दे आइलैंड से लगभग 1600 माइल्स इन द अटलांटिक ओशियन, 1600 माइल्स अगर हम इस केप वर्दे आइलैंड से वेस्ट की ओर जाएंगे अटलांटिक ओशियन में, तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया, ऐसा लाइन है नहीं। और ये ट्रीटी ऑफ तोरदेस्लास में बोला गया कि ऑल द वर्ल्ड टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ दिस लाइन, ईस्ट में जितना भी दुनिया है, जैसे भारत है, जैसे अफ्रीका है, जैसे यूरोप है, इसमें जो पुर्तगाल है, जो पुर्तगीज है, दे कैन गो एंड दे कैन एक्सप्लोर इन दिस एरिया, इस एरिया में पुर्तगाल जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। इसके जो वेस्टर्न साइड में है, तो ये जो ट्रीटी ऑफ ये जो लाइन है, इसके वेस्टर्न साइड में कौन रहेंगे? इसके वेस्टर्न साइड में है ये यहाँ पर साउथ अमेरिका है, है ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ पर किसको अधिकार मिला? इसको स्पेन को अधिकार मिला। यानी ये जो ट्रीटी ऑफ तोरदेस्लास है, अगर हम इसको लिखना चाहें कि ट्रीटी ऑफ तोरदेस्लास है, ट्रीटी ऑफ तोरदेस्लास, इसमें दो देश शामिल थे। पहला कौन थे? स्पेन थे, और दूसरा कौन है? पुर्तगाल है, स्पेन और पुर्तगाल। सो द ट्रीटी ऑफ तोरदेस्लास वाज बिटवीन स्पेन एंड पुर्तगाल। इसमें क्या हुआ? देयर वाज एन इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई केप वर्दे आइलैंड के 1600 माइल वेस्ट में, 1600 माइल्स वेस्ट में, और ऐसा बोला गया कि जो पुर्तगाल हैं वो ईस्टर्न कंट्री पर जिम्मेवारी लेंगे, वहाँ पर जाके ट्रेड करेंगे, वहाँ पर जाके कॉलोनी बनाएंगे, और जो ये लोग हैं ये इस तरफ जाके ट्रेड करेंगे। तो यही जब ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ तोरदेस्लास, इसी कारण से भारत में कौन आए? पुर्तगाल आए, नहीं तो भारत में कौन आते? स्पेन आते, क्योंकि उस समय की दो पावरफुल यही लोग थे, स्पेन और पुर्तगाल। इनका ज़्यादा शिप बिल्डिंग था, एक्सपर्टीज ज़्यादा था, नहीं तो हमारे यहाँ कौन आते? स्पेन आते। तो वही लिखा हुआ है कि ट्रीटी ऑफ तोरदेस्लास हुआ, पुर्तगाल वाज ग्रांटेड द राइट टू क्लेम ऑल नॉन क्रिश्चियन लैंड्स टू द ईस्ट ऑफ एन इमेजिनरी लाइन इन अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में एक इमेजिनरी लाइन बनाया गया और ऐसा बताया गया कि पुर्तगाल का अधिकार है वहां पर जाके उसको क्लेम करने का, जो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड है। दूसरा एक व्यक्ति था बार्थोलोम्यू डियास। ये बार्थोलोम्यू डियास क्या है कि ये पुर्तगाल से चला और यहाँ से चलते हुए यहाँ तक आके ये रुक गया, यानी यहाँ तक ये सी रूट खोजने में सक्षम हुआ। जो बार्थोलोम्यू डियास है, पहली बार 1497 में ये बार्थोलोम्यू डियास, 1487 में बार्थोलोम्यू डियास, ये केप ऑफ गुड होप, यही जो अफ्रीका की सबसे सदर्न टिप है, हालांकि सबसे सदर्न टिप नहीं है, सबसे सदर्न टिप है अगुलास पॉइंट, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप तक आने में सक्षम कौन हुआ? ये हुआ बार्थोलोम्यू डियास 1487 में। हालांकि इसके आगे नहीं आ पाया और इस तरह से ये इंडिया नहीं पहुंच पाया। अब आप सोचेंगे इतना इजी रूट है, खोज क्यों नहीं पा रहे थे? तो इजी रूट देखने में लग रहा है, जैसे कि आप इमेजिन कीजिए आपको कुछ नहीं पता है और यहाँ से निकले, आप इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर कहीं भी तो जा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ आए तो इधर भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, किस तरह, कितना डिफिकल्ट है। आप यहाँ आए तो फिर इधर कोई निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा, और कितना टायरिंग जर्नी होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि जब वास्को ड गामा पहली बार भारत पहुंचा तो उसको 11 महीना का समय लगा पुर्तगाल से भारत आने पर। तो एक जहाज में 11 महीना का समय बिताना कितना मुश्किल है। यानी कि ये जो ट्रेड रूट को फाइंड करना था, ये सचमुच मुश्किल काम था, क्योंकि ये आज से 500 साल पहले
का सब स्टोरी है, हिस्ट्री है। तो ये बहुत मुश्किल कठिन काम था। दूसरा जो आने में सक्षम हुआ, तो पहला कौन था? हेनरी द नेविगेटर, हमने पढ़ा ना, हेनरी द नेविगेटर था। इनका काम क्या था? ये दिन भर सपना देखते रहते थे कि भारत जाना है, इसका यही एक काम था। तो हेनरी द नेविगेटर था। दूसरा हमने क्या देखी, एक ट्रीटी हुआ। कौन सा ट्रीटी हुआ? ये ट्रीटी ऑफ तोरदेसिलास। तो एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ तोरदेसिलास 1494 में। 1494 में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ तोरदेसिलास हुआ। ट्रीटी ऑफ तोरदेसिलास हुआ, ये भी हुआ। तो ट्रीटी ऑफ तोरदेसिलास होता है। फिर क्या हुआ? दूसरी चीज़ क्या हुआ? दूसरी चीज़ हुआ कि अभी जो 1487 में, यानी थोड़ा पहले ही ट्रीटी से, बोर्थोलोमियो डियास जो था, बोर्थोलोमियो डियास, ये केप ऑफ गुड होप आने में सक्षम हुआ। अब जो फाइनली भारत में आ पाता, और ऐसा हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि भारत को किसने डिस्कवर किया, तो उसने भारत को डिस्कवर नहीं किया। भारत को तो पहले ही पूरा दुनिया में जानता था। भारत जो सोने की चिड़िया थी, वो पहले से पूरा दुनिया में अमर था। ये जो वास्को ड गामा है, इसने सिर्फ एक डायरेक्ट सी रूट खोजने में सक्षम हुआ, यानी पुर्तगाल से डायरेक्ट ओशियन रूट विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ये ओटोमन टर्क्स और ये सब का कोई इंटरफेरेंस नहीं, ऐसा डायरेक्ट सी रूट खोजने में सक्षम कौन हुआ? ये वास्को ड गामा हुआ 1498 में। देखिए वास्को ड गामा इन मे 1498, ये डेट पूछ सकता है 1498 कि वास्को ड गामा भारत पहली बार कब आए? 1498 में। 3 शिप्स अंडर वास्को ड गामा, 3 शिप्स थे, इंपॉर्टेंट नहीं है। गाइडेड बाय गुजराती पायलट नेम्ड अब्दुल माजिद। तो जब वास्को ड गामा केप ऑफ गुड होप तक तो रास्ता खोज दिया बोर्थोलोमियो डियास ने, यहाँ तक जब आया तो यहाँ से एक गुजरात का पायलट मिला और वो उसको यहाँ तक लेके आया। अब यहाँ पर आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि गुजरात का पायलट यहाँ क्या कर रहा था। ये लोग तो खोज रहा था सी रूट इंडिया के लिए, पर ये गुजराती आदमी इधर क्या कर रहा है? यानी गुजराती आदमी हमेशा कुछ न कुछ दिमाग लगाते ही रहता है। तो वो जो गुजराती था अब्दुल माजिद, इसके बारे में याद कर लेना है। ये कोई भी क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में या किसी भी अन्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। वास्को ड गामा 1498 में आया। वास्को ड गामा को जो मदद किया पायलट अब्दुल माजिद, जो केप ऑफ गुड होप से भारत की ओर लाया। और ये कालीकट आया। कालीकट मतलब जो केरला का कोस्ट है, यहाँ पर एक कोस्ट पोर्ट सिटी है जिसको कालीकट कहते हैं। तो ये कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला यूरोपियन कौन आया? वास्को ड गामा। फिर वास्को ड गामा को लाने में मदद कौन किया? अब्दुल माजिद। कब आया? 1498 में। कहाँ आया? कैलीकट यानी केरला में पहली बार आया। और इस तरह से ये काम हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्को ड गामा को वेलकम किया गया। जो कैलीकट वहाँ का जो राजा था, जिसको जेमोरिन या समुद्री बोलते हैं, ये जो राजा था, इसने वास्को ड गामा का स्वागत किया, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इसका देश वाले लोग या यूरोपियंस लोग आगे जाके भारत को 2 साल तक खाने वाले हैं, भारत को 2 साल तक लूटने वाले हैं। इन बेचारा को पता नहीं था। और क्योंकि इसका ट्रेड जो इस राज्य का था, ये राज्य पूरी तरह से निर्भर था ट्रेड पर, तो इसलिए कोई ट्रेड करने के लिए व्यक्ति आया है तो स्वाभाविक स्वरूप है कि इसका स्वागत करेगा। तो जो इसका स्वागत किया, यानी उस समय जो राजा था वो जेमोरिन या समुद्री था, कालीकट का राजा था। हाउएवर द पोर्तुगीज सीकिंग टू मोनोपोलाइज the eastern trade quickly alienated the established Arab traders। तो यहाँ पर जो पहले से इंडिया के कोस्ट पर पहले से ही बहुत ट्रेडर थे, जैसे कुछ चाइनीज लोग भी थे, कुछ जावा जो आइलैंड है, जावानीज लोग भी थे, कुछ लोग इजिप्ट के लोग भी यहाँ ट्रेड करते थे, कुछ इंडियंस भी ट्रेड करेंगे। ये सब को, ये जो वास्को ड गामा है, साइड लाइन करना, अरब्स भी बहुत सारे थे, तो ये सबको साइड लाइन करना शुरू कर दिया। और ये चाहता था कि हम अकेला ही ट्रेड करें। तो इसके कारण बहुत बार झड़प भी छोटी मोटी हो जाती थी। उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि स्वाभाविक स्वरूप है, जो बाहर का व्यक्ति कोई ट्रेड करने के लिए आया है, तो वहाँ से जो पहले ट्रेड कर रहा है, तो उसके दोनों के बीच में कुछ तो झड़प होगा ही। तो वास्को ड गामा पुर्तगाल लौटता है विथ हाईली प्रॉफिटेबल कार्गो। बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट होता है, और ऐसा माना जाता है कि जितना भी कॉस्ट लगा 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट वो कमाता है यूरोप जाके। और ऐसा भी बोला जाता है कि जब वो यूरोप अपना सामान लेके गया, तो यूरोपियन ने जो पैसा उससे खरीदने के लिए, मसाला खरीदने के लिए दिया, अगर दूसरे जगह से खरीदता था तो उसको 10 गुना ज़्यादा प्राइस देना पड़ता था। जैसे इमेजिन कीजिए कि आपको कुछ खरीदना है, जैसे मान लीजिए कुछ खाने की वस्तु है, मान लीजिए मैंगो है, या इस समय मान लीजिए एप्पल है, और एप्पल मार्केट में 100 रुपये किलो मिल रहा है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति या सेम एप्पल अगर आपको 10 रुपये किलो दे, तो कैसा बीतेगा, कैसा लगेगा कि वो व्यक्ति बार बार ट्रेड करने के लिए आए। तो यूरोप में जब गया वास्को ड गामा, तो ना कि ये 60 गुना प्रॉफिट कमाया, बल्कि इस जो सामान बेचा उस यूरोपियंस को दूसरे जगह से खरीदने पर 10 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता था। इसलिए बाकी यूरोपियन पावर्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए दूसरे लोगों को भारत की ओर आने के लिए। दूसरा जो व्यक्ति आया पुर्तगाल से, वो है पेद्रो अल्वारेज केवरल। पेद्रो अल्वारेज केवरल, ये 1500 में आए, और ये फैक्ट्री बनाया कैलीकट में, पर ये टेम्प्रोरी फैक्ट्री था, इसको परमानेंट नहीं मानेंगे। और फियर्स रिटेलिएशन, अरब्स वहाँ पर रिटेलिएट करेगा, वो नहीं चाहेगा कि हमारा ट्रेड में कोई और आए। और इस तरह से इन्होंने ट्रीटी भी किया कोचिन और कैनानोर से। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल समझेंगे कि पहला व्यक्ति जो आए वो वास्को ड गामा थे, दूसरा जो आए वो पेद्रो अल्वारेज केवरल है। ठीक है, वास्को ड गामा 1501 में फिर दोबारा आए और फैक्ट्री कैनानोर में खोला, और वहाँ पर जो
हॉस्टिलिटी हुआ, उससे इनका संबंध जेमोरिन के साथ खराब हो गया। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर दोबारा वास्को ड गामा आया जो बाद में आया। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर लीजिएगा, 1503 में पहली बार इन्होंने अपना फैक्ट्री बनाया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1503 में पोर्तुगीज पहली बार अपना फैक्ट्री बनाया, और ये फैक्ट्री उन्होंने बनाया कोचिन में। तो पहला जो फैक्ट्री बनाया कोचिन में, और दूसरा कैलिकट में, और तीसरा केनानोर में। ये तीनों सी है, और ये 3 जगह इन्होंने फैक्ट्री बनाया। पहला कोचिन में, ये भी केरल में पड़ता है, कैलिकट और केनानोर में सबसे पहला फैक्ट्री कोचिन में बनाया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया वर द पुर्तगाली लोग थे, 1500 में ही आ गए, 1498 में आ गए। अगला जो यूरोपियंस आते हैं डच, उसको बहुत समय लगता है, 1605 के आसपास में आते हैं, 100 साल के बाद। तो ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है पुर्तगीज पहली बार कहाँ अपना फैक्ट्री बनाए। तो इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्टेब्लिश किया कोचिन नाम का जगह पर, केरल में। ये दोनों क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो पहला व्यक्ति कौन आए? पहला व्यक्ति आने वाले कौन थे? वास्को ड गामा थे। ठीक है, पहला व्यक्ति जो आए वो थे वास्को ड गामा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला जो आए वो वास्को ड गामा, दूसरा जो आए वो पेद्रो अल्वारेज आए, पेद्रो अल्वारेज कैब्रल। इसके बारे में अगर नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि याद रहना चाहिए, क्योंकि हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज याद हो जाए क्लास में ही। तो पहला व्यक्ति वास्को ड गामा आए, दूसरा पेद्रो अल्वारेज कैब्रल आए। ठीक है, हमने इसको देख लिया। 1503 में इन्होंने फैक्ट्री भी बना लिया। कहाँ बनाया? कोचिन में बनाया। आगे जो आता है वो पहली बार वायसराय के रूप में आता है, यानी पुर्तगाल का जो पूरा एरिया है उसका वायसराय के रूप में उनको एक पोस्ट दिया जाता है, वायसराय का या गवर्नर का। वायसराय से ज्यादा बेटर क्या रहेगा? गवर्नर का पोस्ट दिया जाता है, और ये गवर्नर बन के आता है। और ये पहला गवर्नर बनने वाला था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑफ कोर्स पूछ सकता है, और बहुत बार पूछा भी गया है इससे क्वेश्चन कि जो पहला व्यक्ति पुर्तगाल का आया लेकिन जो गवर्नर के रूप में आया वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल कौन थे? ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 में आए। ये पोर्तुगीज पावर को और पावरफुल बनाया, और इन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे युद्ध भी लड़े, जैसे कि इनको डिफीट किया गया जब इजिप्ट और गुजरात की कंबाइंड नेवी ने इसको डिफीट किया, और इसमें इसका बेटा का मृत्यु हो गया। बाद में इन्होंने उससे अगले साल बदला भी लिया। क्या ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बिल्कुल नहीं पूछेगा। सिंपल क्या पूछेगा? फर्स्ट गवर्नर कौन थे पुर्तगाल का? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में बने। इसका ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि इसका भी लड़ाई होगा। जब भारत आ रहा है, यहाँ पर पहले से लोग ट्रेड कर रहे हैं, भारत के कुछ राजा हैं, उनसे भी लड़ाई हो सकती है। तो जो कंबाइंड आर्मी है इजिप्ट और गुजरात का, उससे इसका नेवी का लड़ाई हुआ, जिससे 1508 में या इससे पहले 1507 में इसका बेटा का भी मृत्यु हुआ, और बाद में 1 साल के बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने उसका बदला भी लिया, इन लोग को पूरी तरह से हरा के। ठीक है, इसका पॉलिसी का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी या कारताज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो कारताज सिस्टम है या ब्लू वाटर पॉलिसी है, किसका पॉलिसी था? तो ये पॉलिसी किसका? ये है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। अच्छा, ये पॉलिसी क्या होता था? जैसा कि नाम बता रहा है, नाम है कारताज सिस्टम। कारताज का मतलब होता है कि इनसे आपको एक दस्तक लेना पड़ेगा। दस्तक मतलब आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और अगर ये इनका कहना सिंपल था कि कोई भी इंडियन ओशियन में ट्रेड करना चाहता है, कोई भी इंडियन ओशियन में जाना चाहता है, ये पूरा एरिया में, ब्लू वाटर मतलब क्या होता है? ब्लू वाटर मतलब होता है गहरा पानी, छिछला पानी नहीं। तो ब्लू वाटर, जैसे मैप में भी आप ज्योग्राफी का एटलस पढ़िएगा, मैप पढ़िएगा, तो देखिएगा कि ब्लू वाटर वहाँ पर ज़्यादा कलर ब्लू रहेगा जहाँ पर ज़्यादा डीप रहता है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी या कारताज पॉलिसी ये था। इसका कहना था कि कोई भी शिप लेके अगर इंडियन ओशियन जाता है तो आप हमसे दस्तक ले लीजिए, या कारताज ले लीजिए, या एक लाइसेंस बनवा लीजिए, एक सर्टिफिकेट ले लीजिए, और ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास रहेगा तो हमारा बंदा जाएगा आपके साथ बॉडीगार्ड बन के, और आपको जहाँ भी जाना है वहाँ तक पहुँचा के आएगा। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो क्या होता था कि हमारी गारंटी नहीं है कि आपके साथ जो समुद्री डकैत होते हैं वो क्या करेंगे। और समुद्री डकैत कोई और नहीं होता था, यही पुर्तगीज के लोग जाते थे और उससे लूटपाट करते थे, ताकि इसका वर्चस्व सी में बढ़ सके, ताकि इससे परमिशन लेकर ही लोग सी जा सके, ताकि इसके आज्ञा के बिना कोई समुद्र में ना जा सके, और जब तक ये ना चाहे तब तक कोई और समुद्र में ट्रेड ना कर सके। इससे इसकी वर्चस्व क्या रहेगा? इसकी पावर समुद्र में बना रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी या कारताज सिस्टम बोलते हैं। यानी दिस वाज अ सिंपल सिस्टम इन विच Portuguese would provide permits license to venture into the sea. If any people refuse to get that license, then they would be harmed, they would be looted, they would be destroyed by the Portuguese army in the, मतलब अपना रूप बदल के, और रूप कैसा रखेंगे? वो पायरेट्स की तरह रखेंगे। अगला जो आते हैं गवर्नर, उनका नाम है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसका नाम ऐसा इसलिए, या इसका नाम तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ही है, पर आपने नाम सुना होगा अल्फोंसो मैंगो के बारे में। अल्फोंसो मैंगो का नाम इसलिए अल्फोंसो पड़ा क्योंकि ये जो अल्बुकर्क है, इनको आम इतना पसंद था, वो खास आम, कि उसको बहुत खाता था, इसलिए उस आम का नाम क्या पड़ गया? अल्फोंसो पड़ गया। तो अल्फोंसो मैंगो आप जब भी सुने आपको याद आना चाहिए कि जो दूसरा गवर्नर भारत में आए पुर्तगाल का, उनको बोला जाता है अल्फोंसो,
उनके नाम पर पड़ा है अल्फोंसो आम का नाम। इनको माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन द ईस्ट। इन द ईस्ट मतलब इंडिया में और आसपास के एरिया में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी एकदम क्वेश्चन डायरेक्ट उठाकर इसमें दिया गया है कि who is considered as the real founder of Portugal power या Portuguese power in India, so he was none other than Alfonso de Albuquerque। Alfonso de Albuquerque ही थे जिसको माना जाता है कि he was the real founder of Portuguese power in the East। ऐसा कहने के पीछे क्या राज है? देखिए, पहले इन्होंने गोवा को छीन लिया। गोवा को क्या किया? 1510 का साल है, 1510 में गोवा आता है एक राजा के अंदर जिसको बोलते हैं बीजापुर डायनेस्टी। आगे जब आप पढ़ेंगे डेक्कन सल्तनत के बारे में, बहमनी रूलर के बारे में, तो वहां पर देखिएगा कि जो डेक्कन सल्तनत थे वो 5 पार्ट में बट गया। उसमें से एक पार्ट था बीजापुर। आगे पढ़ेंगे मीडिएवल हिस्ट्री में तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पर एक रूलर था जिसको बोलते हैं बीजापुर डायनेस्टी का था। इसका जो राजा था उसका नाम था आदिल शाह। क्या नाम था? आदिल शाह। तो इसका राजा का नाम है आदिल शाह। यही आदिल शाह, बीजापुर डायनेस्टी का राजा आदिल शाह है। और इसी से अल्बुकर्क ने क्या लिया? गोवा लिया। तो गोवा किससे लिया? सुल्तान ऑफ बीजापुर से लिया, 1510 में लिया। और ये पहली बार मेजर टेरिटरी पोजीशंस के अंदर गया। मतलब कहने का मतलब है कि सिकंदर के बाद भारत का कोई भी एरिया जो यूरोपियंस के अंदर गया वो यही है। मतलब यूरोपियंस के अंदर जो गया वो गोवा है। और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि गोवा को किस पोर्तुगीज गवर्नर ने या किस पोर्तुगीज ने गोवा को अपने में मिलाया, पोर्तुगीज में मिलाया? तो वो था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। या किसके समय गोवा पोर्तुगीज का हिस्सा बना? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से पूछ सकता है। दूसरा, कब ऐसा किया? 1510 में। तीसरा, कौन सा डायनेस्टी था? बीजापुर डायनेस्टी। कौन से राजा थे? आदिल शाह। ये चारों क्वेश्चन पूछने की पूरा संभावना है। बहुत बार पूछा हुआ है, अलग अलग एग्जाम में देखिएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि द सुल्तान ऑफ बीजापुर आदिल शाह गेव या फिर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क गोट गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर दैट इज आदिल शाह इन 1510। 1510 में जो बीजापुर के सुल्तान है उससे गोवा कौन छीन लिया? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने छीन लिया। ये और भी बहुत ज़्यादा जगह बेस बनाया स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, जैसे ओरमुज, जैसे मालाबार, जैसे मलक्का, और ये परमिट सिस्टम भी वहाँ पर देते थे। अब ये सब जगह आपको मालूम होना चाहिए कि ओरमुज क्या है, या अभी जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, ये आपका जिम्मेवारी बनता है। इसे तो हम बता सकते हैं कि देखिए जो ऊपर में हमने पढ़ा है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये पर्सियन गल्फ दिख रहा है, पर्सियन गल्फ यहाँ पर देखिए सकरा हो गया, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। यही वो बोलना चाह रहा है कि इतना क्रिटिकल लोकेशन है। अगर इस यहाँ पर किसी ने बेस बना लिया तो ये पूरा एरिया को क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, यहाँ से कोई शिप नहीं जाएगा। तो ये हॉर्मुज पर कंट्रोल कर लिया। फिर देखिए और भी जगह है, जैसे मलक्का स्टेट था। आप जानते होंगे कि इस तरफ जो भारत है, भारत के ईस्टर्न साइड में स्टेट ऑफ मलक्का है। आप इसको खोज के आइएगा कि थाईलैंड, और उसके नीचे कौन सा कंट्री है? मलेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, सिंगापुर है, और यहीं पर सुमात्रा आइलैंड है। इसी के बीच में जो स्टेट है इसको क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मलक्का। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार जाके आप गूगल में इसको देख लीजिएगा कि हॉर्मुज कहाँ है। मलक्का, हॉर्मुज भी बता दिए, मलक्का भी बता दिए। और मालाबार क्या है? मालाबार कुछ नहीं, केरल कोस्ट को मालाबार कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे बनाए, जैसे कोचिन, कैनानूर, ये सब में बनाए ना। तो ये जगह बेस बनाने से क्या हुआ कि जो पोर्तुगीज है उसका और भी पावर बढ़ गया। इसकी जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है, इसकी एक खास थी इसके समय में, इसका जब जहाँ रूल था, इन्होंने इनकरेज किया कि उनके अपने व्यक्तियों को, पुर्तगाल के लोगों को, कि आप भारतीय औरतों से शादी कीजिए। अगर पुर्तगाल के लोग भारत के औरतों से शादी करते हैं तो यहाँ जो पॉपुलेशन बढ़ेगा वो उसका ओरिएंटेशन किधर रहेगा, उसका सोच किससे मिलता जुलता रहेगा, वो किसका भक्त रहेगा, वो सब पुर्तगाली का रहेगा। और इस तरह से पुर्तगाल का रूल और लंबे समय तक चल सकता है। इतना डेंजरस ये लोग थे कि भारत के जो पूरा डेमोग्राफिक वो है उसको बदलना चाहते थे, पूरा डेमोग्राफिक को बदलना चाहते थे। भारत की जो कल्चर है उसको पूरा बदल देते, भारत का रिलीजन को बदल देते। क्योंकि ये सब जो बच्चे होते, कोई हिंदू को तो फॉलो उतना नहीं करते, क्योंकि इसका बाप कैसा था? क्रिश्चियन था। तो जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है, ही इनकरेज्ड हिज मेन टू टेक इंडियन वाइफ्स। ही इज ऑल्सो नोटेड फॉर द एबोलिशन ऑफ सती इन गोवा। और गोवा में इनका ही राज में क्या किया गया? अब सती का एबोलिशन किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पुर्तगाल के किस गवर्नर के समय सती को एबोलिश कर दिया गया गोवा से? तो गोवा से सती को एबोलिश कर दिया किसके समय में? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के समय में। अगला जो आए गवर्नर, और ये लास्ट गवर्नर का पढ़ना है, तो आप टेंशन नहीं लीजिए कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक बार अगर देखिए, हम लास्ट में आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे, तो अभी आप सुनते जाइए, लास्ट में फिर से रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला जो गवर्नर आए वो है निनो दा कुन्हा।
तो ये नीनो डी कुन्हा, ये 1529 में गवर्नर बने। इनका एक ही काम था कि ये जो हेडक्वार्टर है पुर्तगाल का, जो हेडक्वार्टर जो मेन सेंटर है वो कोचिन से गोवा कर दिया 1530 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए यहाँ इंक्लूड किया गया कि हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल फ्रॉम कोचिन टू गोवा इन 1530, तो दिस वाज नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा थे। ये उतना इंपॉर्टेंट ना है, पर ये बेसिन जो जगह है, बेसिन, ये बेसिन जगह को भी इन्होंने कैप्चर किया, बेसिन को भी कैप्चर किया, जो मुंबई के पास एक छोटा सा आइलैंड टाइप का है बेसिन, या पोर्ट सिटी की तरह है, पोर्ट सिटी आइलैंड ये सब। तो बेसिन को भी मुंबई के पास है। ये बहादुर शाह जो गुजरात के रहने वाले थे उससे इन्होंने छीन लिया, और बाद में बहादुर शाह जफर की मृत्यु भी कर दी गई इसके द्वारा। तो बहादुर शाह याद रखना है, कहाँ का रूलर है बहादुर शाह? गुजरात का। गुजरात का एक ही रूलर के बारे में याद करना है, बहादुर शाह। जहाँ भी गुजरात का आप पढ़ रहे हैं आप देखिएगा मोस्ट जगह पर वहाँ का रूलर का नाम बहादुर शाह ही रहेगा। तो बहादुर शाह जो था उससे ये बेसिन छीन लिया, कौन? नीनो डी कुन्हा, ठीक है। और इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बंगाल में बढ़ाया और हुगली को अपना की सेटलमेंट बढ़ाया, यानी बंगाल की तरफ भी ये जो पुर्तगीज है ये बढ़ा किसके समय में? नीनो डी कुन्हा के समय में। और ये हुगली में अपना सेटलमेंट बनाया। बस इतना ही जानना है नीनो डी कुन्हा के बारे में। अब देखिए जल्दी जल्दी कुछ सिंपल चीज़ है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो कम है, फैक्ट जो कम है, और समझने का थोड़ा सा ज़्यादा है। और क्योंकि हम जानते हैं ये प्री से ओरिएंटेड है, तो इसका क्वेश्चन पूछने का यहाँ के बाद थोड़ा कम चांस बनता है। पर ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, पर ऊपर के कंपैरिजन में थोड़ा कम चांस बनता है। पहला है कि फेवरेबल कंडीशन पुर्तगीज का क्या था, यानी कि जब पुर्तगाल भारत में आए तो कैसे ये इतना जल्दी यहाँ पर जम गए, क्या फेवरेबल कंडीशन था जिसके कारण इनको यहाँ पर इतनी ज़्यादा सफलता मिली। पहला कारण ये था कि जो नॉर्थ इंडिया था, दिस नॉर्थ इंडिया वाज फ्रेगमेंटेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स। नॉर्थ इंडिया बहुत छोटे छोटे किंगडम में टूटे हुए थे। अभी हमने पढ़ा कि जब ये आए 1498 में, तो 1526 में तो मुगल एम्पायर ही बना। उससे पहले जो दिल्ली सल्तनत था वो वीक हो चुका था और छोटे छोटे राजा थे, उसके कारण कोई भी राजा इससे टक्कर लेना नहीं चाहता था। दूसरा जो इसके समय फेवरेबल कंडीशन था वो था कि जो बहमनी किंगडम है, अभी देखे ना बीजापुर के बारे में, तो बहमनी किंगडम जो था ये भी टूट चुका था 5 पार्ट में, तो यहाँ भी टूट गया है। कोई भी पावरफुल रूलर नॉर्थ इंडिया में नहीं, एक्सेप्ट फॉर महमूद और बेरघरा, यानी गुजरात के पास एक गुजरात जो था वहाँ पर महमूद बेघरा था। ये महमूद बेघरा थोड़ा पावरफुल रूलर था, इसके अलावा आसपास में कोई भी पावरफुल रूलर नहीं था, वो एक कारण था। और दूसरा कारण था कि बहमनी किंगडम भी जो साउथ इंडिया में था वो भी टूट रहा था। तीसरा कारण है कि ये नेवल सुपीरियरिटी था। इंडिया में बहुत सारे राजा तो थे अभी भी जो आर्मी में बहुत मजबूत थे, और आर्मी में अभी भी उससे टक्कर नहीं ले पाता, यानी जमीन पर लड़ता तो पुर्तगाल को हरा दिया जाता, पुर्तगीज को हरा दिया जाता। बट इन द नेवी फील्ड पुर्तगाल वर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो पुर्तगाल के पास स्ट्रॉन्ग थे और टेक्नोलॉजिकल एज भी था। जैसे अभी हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन इसका बहुत डिसिप्लिन्ड है, यूनिटी था, और कैनन्स जो तोप हैं वो अपने सीप पर लेकर चलते थे, इससे इनके पास क्लियर एडवांटेज था। इसके कारण जो पुर्तगाल आए भारत में उससे ये यहाँ आसानी से सफलता मिला इन 3 वजह से। नॉर्थ इंडिया पूरा टूटा हुआ था, नेवल सुपीरियरिटी था, और टेक्नोलॉजिकल एज भी था। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, सब लिखा हुआ है। पुर्तगीज स्टेट है, ऐसा बोला जाता है कि जो पुर्तगीज का स्टेट था, यानी जो पूरा एरिया जिस इसके अंदर जो कैप्चर था वो बहुत छोटा था। हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा एरिया नहीं था, पर आप देखिएगा कि दमन से दीव, चाहे मुंबई से दमन हो, कल हमने दमन के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो गुजरात के कोस्टल एरिया है दमन, गुजरात के जस्ट ऊपर में, गुजरात के चारों तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है, पर ये एक यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, दमन एंड दीव एंड नागर हवेली का पार्ट है। तो मुंबई से लेकर दमन तक इसका ये जो कोस्टल प्लेन है यहाँ पर अधिकार था। अभी हमने देखा कि गोवा ले लिया है, दीव ले लिया है, दीव एक आइलैंड है, ये जाके ज्योग्राफी में आप देख लीजिएगा, लेक्चर दिया हुआ है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी करके, उसमें हमने सारा यूटी के बारे में समझा है। तो मुंबई से दमन टू दीव, गोवा, यहाँ देखिए मैंगलोर हो, कैनानोर हो, कोचीन हो, सेंथोम हो, नागपट्टनम हो, हुगली हो, ये सब एरिया में इसका कंट्रोल था। यानी कि वी जनरली ट्राई टू, हम मिसअंडरस्टूड रहते हैं, हम इसको अंडरस्टिमेट कर देते हैं कि जो पुर्तगीज है इसके पास ज़्यादा एरिया कंट्रोल में नहीं था, पर जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अच्छा खासा एरिया इन्होंने जमा रखा था। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हेड था उसको वाइसरॉय कहते थे या गवर्नर कहते थे। अभी हमने पढ़ा ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले थे, फिर पढ़ा अल्बुकर्क, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर। देन हमने पढ़ा नीनो डी कुन्हा, ये सब क्या है? गवर्नर है या वाइसरॉय है, वो हेड रहते थे। और उसको असिस्ट करता था वेदोर द फेजेंदा, जो फाइनेंस और फ्लीट्स को देखता था, यानी कि जो जहाज है कहाँ की कैसे जाएगी उसको देखने वाले कौन थे? वेदोर द फेजेंदा थे। इस तरह से इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, सिंपल भाषा में, कि इसका जो हेड थे वाइसरॉय थे। ये क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं पूछ सकता है, बहुत कम चांस है। अच्छा, रिलीजियस पॉलिसी पुर्तगीज का क्या था? तो पुर्तगीज हैड कम टू इंडिया टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को फैलाने आए थे। इससे पहले देखे थे कि देयर वर मेनी होली वार्स बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, जो इस्लाम है और क्रिश्चियंस है, उसमें पहले से ही बहुत सारे झड़प हो चुके हैं, लड़ाई हो चुके हैं होली वार्स के नाम से। यानी कि वो आए हैं इसलिए कि मुस्लिम इंटरमीडियरीज को वो बाईपास कर सके। सो व्हेन दे कम टू इंडिया, दे केम टू स्प्रेड द क्रिश्चियनिटी, रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। और ऐसा बोला जाता है कि पुर्तगीज केम टू इंडिया विथ
बाइबल इन वन हैंड एंड मनी इन द अदर हैंड। दूसरे में तो ट्रेड करने आए एक लक्ष्य था, और दूसरा लक्ष्य था क्रिश्चियनिटी को फैलाना। और मुस्लिम से पहले ही दिक्कत है, तो ये जब आए तो वो परसिक्यूट करना चाहते थे सभी मुस्लिम को वो मारना चाहते थे, पिटना चाहते थे, सताना चाहते थे। पर एक आया इंक्विजिशन इन गोवा। इंक्विजिशन इन गोवा का मतलब सिंपल होता है कि ए लॉ वाज ब्रॉट इन गोवा थ्रू विच दे वांटेड टू एस्टेब्लिश द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द चर्च। जो चर्च है, प्रोटेस्टेंट चर्च जो है, या जो भी पुर्तगाल में चर्च था, कैथोलिक चर्च एक्सेट्रा, कोई भी तरह का चर्च होगा, वो अभी हमको एग्जैक्टली याद नहीं है कि कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है, पर सिंपल है कि वो चर्च की रूल को गोवा में एस्टेब्लिश करना चाहते थे। इसी को बोलते हैं इंक्विजिशन इन गोवा। इंक्विजिशन इन गोवा मीन्स दे वांटेड टू एस्टेब्लिश द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वर फॉलोड इन द चर्च, या दैट वर ऑर्डर्ड बाय द चर्च। चर्च का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसको गोवा में फैलाना चाहते थे, और इसके साथ वो हिंदूज के खिलाफ भी हो गए। पहले तो वो सिर्फ मुस्लिम से लड़ाई करते थे, क्योंकि हिंदू से उनका अभी उतना फेस टू फेस नहीं हुआ था। मुस्लिम वर्ल्ड इनके जस्ट करीब था, तो वहां पर पहले ही दोनों में यूनिवर्सिटी था। पर जब इंक्विजिशन इनको आया तो वो हिंदू को भी गलत ट्रीट करने लगा। अब हम अकबर के बारे में जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अकबर को इंटरेस्ट था थियोलॉजी में, यानी कि इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन, धर्म क्या है, भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान को कैसे मनाया जाता है, भगवान को खुश कैसे कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। सो द अकबर वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द थियोलॉजी, इन द स्टडी ऑफ द रिलीजन, और इसलिए वो सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को बुलाते थे ताकि उनसे कुछ शिक्षा ले सके। तो उन्होंने जो ये उस समय पुर्तगीज ही थे भारत में, इसलिए पुर्तगीज से रिक्वेस्ट किया कि आप अपने धर्मगुरुओं को हमारे पास भेजिए ताकि हम कुछ डिबेट कर सके और समझ सके। तो उसी क्रम में रोडोल्फो एक्वाविवा, एंटोनियो मोन्सरेट और बाद में जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहीरो अकबर के कोर्ट में गए, और इनका मानना था कि अगर अकबर को कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा भारत को ये क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने में सक्षम होंगे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, हालांकि ये लोग गए लेकिन वहां पर अकबर को कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बहुत कम चांस है, पर आप जब पढ़ रहे हैं तो जब ऑप्शन में आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। याद करने का, उतना रटने का कोशिश नहीं कीजिए, सिंपल है। रोडोल्फो एक्वाविवा, एंटोनियो मोन्सरेट, जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहेरो, इस तरह से कुछ लोग जो थे, वो फादर्स जो थे या जो रिलीजन के ज्ञाता थे क्रिश्चियन के बारे में, वो मुगल कोर्ट में गए थे। रटने का कोशिश नहीं कीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा तो जो याद होता है वहाँ ऑप्शन देखिएगा, आपको बन जाएगा क्वेश्चन। आगे है पुर्तगीज लूज फेवर विद द मुगल्स। जब मुगल्स बने तो पुर्तगीज तो बहुत लंबे समय तक राज किया, यानी कि जो अगला पावर था डच, वो करीब 1605 में आया, पुर्तगीज 1498 में आते हैं, मुगल 1526 में अपना एम्पायर बनाते हैं, यानी कि एक अच्छा संबंध चल रहा था। पर फिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि पुर्तगीज मुगल के आंखों में बदनाम हो गए और मुगल का जो फेवर इनके पास था वो खत्म हो गया। पहला ये हुआ कि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस है, आगे पढ़ेंगे, 1608 में ये पहले अंग्रेज थे जो भारत आए। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में आए, और 1608 में जब आए तो वो जहांगीर से बहुत सारे समझौता किए। हालांकि बाद में पुर्तगीज के दबाव में जहांगीर ने इन समझौतों को रद्द कर दिया, लेकिन फिर भी जब ब्रिटिश लोग आने लगे तो इससे एक दबाव बना पुर्तगीज पर कि वो अब एकलौते भारत में यूरोपियन नहीं रहेंगे। बाद में 1612 में थॉमस बेस्ट नाम का, या कैप्टन बेस्ट नाम का व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, और इन्होंने पुर्तगीज फ्लीट को हरा दिया। पुर्तगीज फ्लीट को हरा दिया, यानी पुर्तगाल के नेवी को बेस्ट ने अपना बेस्ट करते हुए पुर्तगाल को हरा दिया। इससे जो उस समय के राजा थे, जहांगीर उस समय के राजा थे, वो बहुत इंप्रेस्ड हुए कि पहले, क्योंकि उनके पास खुद का पावरफुल नेवी नहीं था। अब देख रहा है कि जो पुर्तगाल, जिनका हम इतना सम्मान करते थे, उनके नेवी के पावर होने के कारण उसको अंग्रेज थॉमस वेस्ट के अंदर हरा दिया, और इस तरह से उन्हें बहुत खुशी हुई और एक अलग इमेज बना अंग्रेज का उनके दिमाग में। पायरेसी भी, पुर्तगीज लोग बहुत पायरेसी करते थे। पायरेसी मतलब कि जो समुद्री लुटेरा, जैसे अभी बोले, जो जब कारताज सिस्टम पढ़ रहे थे तो देखे कि जो भी इससे कारताज नहीं लेता था, दस्तक नहीं लेता था, लाइसेंस नहीं लेता था समुद्र में जाने का, उसके खिलाफ ये क्या करते थे, लुटेरा बन के समुद्र लुटेरा करते थे। और इस तरह से मुगल के भी शिप को 1613 में लूट लिए। तो इससे, क्योंकि 1612 में क्या हुआ, थॉमस बेस्ट को हराया, और उससे जो ये हैं मुगल हैं, ये मुगल रूलर हैं, वो इंग्लिश को कुछ फेवर देना चाहेंगे, इंग्लिश को बोलेंगे कि आप भी ट्रेड कर सकते हैं, आप भी सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं। उससे नाराज होकर इन्होंने उनके ही शिप के खिलाफ पायरेसी करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी मुगल का राजा है, भारत मजबूत है, भारत के जो राजा है, मुगल साम्राज्य है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, इंडिया में जो पावरफुल राजा है। तो जहांगीर का जब शिप को लूटा तो उतना तो ये लूट नहीं पाएगा, इसलिए वहां पर जहांगीर इससे गुस्सा हुए। बाद में हुगली जो जगह है, शाहजहां के समय क्या हुआ, शाहजहां, ये लोग स्लेव ट्रेड करते थे, यानी जो हुगली जगह है, हुगली कलकत्ता में है ना, आप लोग जानते होंगे, भली वाकिफ होंगे, हुगली रिवर से हुई।
हुगली में ये लोग स्लेव ट्रेड करते थे, यानी छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ते थे और उनको क्रिश्चियन धर्म में बदलते थे और बाद में उसको बेच दिया जाता था जो रिच यूरोपियन से उसके यहाँ। तो इस स्लेव ट्रेड में क्या हुआ, जो शाहजहां की पत्नी थी मुमताज महल, इनकी दो जो लड़कियां थी, दो उनकी जो स्लेव गर्ल्स थी, उसको इन्होंने क्या किया, सीज कर लिया, यानी उसको उन्होंने किडनैप कर लिया। इससे शाहजहां बहुत नाराज हुआ और वो जो गवर्नर थे बंगाल का कासिम खान, उसको ऑर्डर दिया कि आप जल्दी से हुगली को खाली कराइए। तो क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कासिम खान कौन था, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, कहानी को ओवरऑल समझते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। ये इतना नहीं पूछेगा कासिम खान, ये पूछ सकता है कि हुगली का जब कैप्चर हुआ तो उस समय कौन राजा थे भारत के, मुगल के, तो वो थे शाहजहां और 1632 में ये कैप्चर हुआ। तो आप डेट भी उतना नहीं याद रखिए, पढ़ते समय आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत याद रह जाएगा। नहीं तो शाहजहां के समय में ऐसा घटना घटा था, ये कभी नहीं पूछेगा कि कासिम खान को भेजा था, गवर्नर उस समय का कासिम खान था। पर क्योंकि हमने नोट्स बनाया है और पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ाना हमारी जिम्मेवारी बनता है। आगे देखिए कि पुर्तगीज का डिक्लाइन कैसे हुआ। तो पुर्तगीज के डिक्लाइन के कारण बहुत था। पहले क्या देखे कि ये जो पुर्तगीज थे ये सबसे पहले 1498 में ही भारत आ गए थे, ठीक है। अगला जो है जो डच है वो लगभग 1605 में पहली बार भारत आए। देखिए 107 साल का गैप है, यानी तब तक तो इसको डिक्लाइन नहीं आएगा। लेकिन जब 100 साल के बाद भारत में डच भी आए, 100 साल के बाद भारत में इंग्लिश भी आए 100 साल के बाद, और 1616 में आगे देखेंगे कि डेन्स भी आए, डेनमार्क के लोग भी आए, और फिर बाद में फ्रेंच भी आए। इसके आने से इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब जो है कंपटीशन फैल चुका था, और जब कंपटीशन होता है तो कोई एक तो घटेगा, दूसरा तभी तो पावरफुल बनेगा। तो ये जो था ये था राइवल यूरोपियन पावर्स एक कारण था, क्योंकि पुर्तगीज क्यों नीचे चले गए। द अराइवल ऑफ इंटरप्राइजिंग डच एंड इंग्लिश ब्रोक देयर मोनोपोली। इसका जो मोनोपोली था, सिर्फ यही इस रूट को जानते थे, यही सिर्फ ट्रेड कर रहे थे, वो मोनोपोली खत्म हो गया। इससे इसके पावर में कमी होगी। ये सूरत भी इंग्लिश के हाथ चला गया, यानी कि जब थॉमस बेस्ट या जो बेस्ट थे सर वेस्ट, वो जब हराए इसको तो सूरत भी इनसे छीन लिया। और इसके जितने भी फोर्ट्स थे मालाबार कोस्ट में, यानी केरला कोस्ट में, मैंगलोर से तमिलनाडु के कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, कोस्टल प्लेन का पार्ट है, वहां आप पढ़िएगा। तो ये डच से मालाबार कोस्ट भी हार गए। इस तरह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपना एरिया हार रहे हैं, इसलिए कमजोर पड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये है पुर्तगीज हैं, ये गोवा में इनका हेडक्वार्टर था। अभी देखे ना 1530 में नीनो डू कुन्हा, उन्होंने गोवा में इसका हेडक्वार्टर बनाया था। यही गोवा के बगल में मराठा का उदय हुआ, यानी मराठा जो पावरफुल मराठा थे शिवाजी के अंदर, उनका उदय हुआ, और ये बहुत बड़ा एरिया को कंट्रोल करते थे, और ये गुरिल्ला वारफेयर में मास्टर थे, कहीं पर भी जाके लूट लेते थे। और ये तो ऐसे भी यूरोपियन है, इनको क्यों छोड़ेंगे हम, मराठा लोग क्यों छोड़ेंगे इनको, तो इनको भी जाके लूट लेते थे, बहुत बार अटैक करते थे। इससे भी इनका जो पावर था उनमें बहुत क्षति पहुंचा। ये भी दूसरा कारण था। क्या दूसरा कारण था, कि मराठा का उदय होना इनके आसपास ही। तीसरा कारण ये था कि ये जहां जहां भी रूल था, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, पावरफुल रूल आ गया, साउथ इंडिया में भी क्या हुआ, मराठा का उदय हुआ। जहां जहां भी इन्होंने, और देखे थे पहले, इससे पहले कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी बना लिया है, वहां भी कोई पावरफुल डायनेस्टी का उदय हुआ, यानी जहां जहां इनका बेस था वहां पावरफुल डायनेस्टी आया, जिससे इसका पावर कम हो गया। तीसरा कारण यह था कि ये स्पेन के साथ मिल गए। ये जो पुर्तगाल और स्पेन, अभी देखे थे कि दो अलग अलग देश है, यहाँ देखे थे, यहाँ देखिए कि ये पुर्तगाल है, ये वाला ऊपर वाला, और ये स्पेन है। ये दोनों देश एक हो गया, ये दोनों देश मिल गया। ये दोनों देश मिलने के कारण क्या हुआ कि इसका जो युद्ध है वो यूरोप में बहुत ज्यादा फैल गया। यूरोप में ये बहुत जगह युद्ध में फंस गए, जिससे ये भारत में कम फोकस कर पाए, और वो उसके कारण भी इसका क्या हुआ, नुकसान हुआ। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, द यूनियन विथ स्पेन, स्पेन के साथ यूनियन हुआ, इंटेंगल्ड देम इन फॉरेन वार्स, पूरा विश्व में इनका युद्ध ज्यादा फैल गया। एंड द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील डाइवर्टेड रिसोर्सेज वेस्टवर्ड। तो ये बाद में जब ब्राजील का डिस्कवर होता है तो ये ज्यादा फोकस कहाँ करने लगे, ब्राजील में करने लगे। उतना ही व्यक्ति है, अब कुछ इंडिया में रहेगा, कुछ ब्राजील में रहेगा, उतना ही संपत्ति है, धन है, पैसा है, दौलत है, नेवी है, फ्लीट है, जहाज है, ये सब, उतना ही गोला बारूद है, तो अब कुछ ब्राजील में भी जाएगा। इससे भी इसका जो अटेंशन का डाइवर्जन हुआ, उसके कारण ये भारत में कमजोर पड़ गए। फिर इंटॉलरेंस भी थे, हमने देखा कि ये सी पायरेसी करते थे, हमने देखा कि ये लड़कियों को किडनैप करके उनका ट्रेड करते थे, स्लेव ट्रेड करते थे, इसके कारण भी दिक्कत हुआ। सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस व्हाई पुर्तगीज गोट डिक्लाइंड और पुर्तगीज लॉस्ट इन इंडिया इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन पावर्स। अदर यूरोपियंस जो थे उनका पावर बढ़ा और पुर्तगीज यहाँ डाउन चले गए, बिकॉज कि इनके बगल में ही पावरफुल रूलर आ गए। ये जो अदर यूरोपियंस है उनसे बहुत तगड़ा इनको मुकाबला झेलना पड़ा, कंपटीशन झेलना पड़ा, और बाद में ये इनका डाइवर्सन भी, अटेंशन भी कहाँ चला गया, ब्राजील की तरफ चला गया। और ये स्पेन में मिलने के बाद युद्ध में ज्यादा इंगेज रहे यूरोप में, और साथ में इंटॉलरेंट भी थे, पायरेसी करते थे, स्लेव ट्रेड करते थे। उससे यहाँ के राजा इनके खिलाफ नाराज हुए और एक्शन लेना शुरू किया। अच्छा, क्या कुछ सिग्निफिकेंस भी है पुर्तगीज, भारत में पुर्तगीज आए तो हमने देखा कि क्या कि ट्रेड करना शुरू किए। तो इनसे हमें क्या क्या
कुछ फायदा जो मिला उसको किस में लिखेंगे, सिग्निफिकेंस में लिखेंगे, यानी इंपोर्टेंस ऑफ पोर्तुगीज टू इंडिया, भारत के लिए ये कैसे महत्वपूर्ण रहे, क्या कुछ इनका पॉजिटिव योगदान को भी याद रखा जा सकता है, उसको हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। एक तो इनका इंपोर्टेंस ये नवल सुप्रीमेसी, यानी ये पहली बार बताया कि किसी भी देश को नेवी में स्ट्रांग होना कितना महत्वपूर्ण है। आज भारत, आज ही या कल राजनाथ सिंह या जो नेवी के चीफ है उन्होंने कहा है कि इंडिया इज गोइंग टू ब्रिंग इट्स थर्ड सबमरीन न्यूक्लियर वेपन, जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जो सबमरीन होता है जो पानी के अंदर पनडुब्बी चलते हैं, वो न्यूक्लियर पावर से भारत तीसरा आने वाला है। ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत इज फोकसिंग मोर ऑन इट्स नेवी। ये सीख हमें कहाँ से मिलती है, पहले इसी से मिलती है कि हमारा मुगल एम्पायर इतना पावरफुल था, फिर भी ये लोग हम पर आकर क्यों राज कर पाए, बिकॉज देयर नेवी वॉज स्ट्रॉन्ग, वी वर नॉट स्ट्रॉन्ग इन नेवी, वी वर स्ट्रॉन्ग इन आर्मी ओनली। तो आर्मी में स्ट्रॉन्ग होने के कारण ट्रेड तो पूरा ये लोग लेके डूब जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से घेर लेगा। सो नेवल सुप्रीमेसी जो है ये इनका सिग्निफिकेंस है। दे वर द फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द सुप्रीमेसी ऑफ नवल पावर। नवल पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले पहले थे। ये कैनन्स रखते थे, सीप पर गोला रखते थे, विच एनेबल्ड देम टू फोर्स देयर ट्रेड मोनोपोली। इस तरह से ये ट्रेड पर मोनोपोली कर लिए, खास करके कारताज सिस्टम से। मिलिट्री ट्रेनिंग जो इनका है ये भी हमें सिखाया है, और बाद में हमारे आर्मी और मराठा हो, सिख हो, सबने इसको एडोप्ट किया है। जो मिलिट्री ट्रेनिंग था वो था ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री। ये एक ट्रेनिंग का तरीका होता है, इन्फेंट्री जब ड्रिलिंग करता है, अभी भी देखते हैं जो एक डिसिप्लिन परेड करता है, इसको इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। सिंपल समझना है कि ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री मतलब दे ब्राउट डिसिप्लिन, दे ब्राउट ए न्यू सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग इनटू द इंडियन आर्मी विच वर लेटर आल्सो एडोप्टेड बाय फ्रेंच, इंग्लिश, मराठाज, सिख्स, और बाद में हमारे अभी जो आर्मी है ये भी इनको चालू रखे हैं अपने ट्रेनिंग में। तो मिलिट्री ट्रेनिंग हमें सिखाते हैं। मेरी टाइम स्किल के बारे में हमने सिखाया, इन्होंने मैपिंग को सिखाया, ट्रेंड पायलट्स को रखा। तो ये सब हमें सीखने को मिला। ये सब याद नहीं करना है, अपने भाषा में जाके एग्जाम में लिखना है अगर सब्जेक्टिव आता है, क्योंकि बीपीएससी में सब्जेक्टिव है नहीं, सब्जेक्टिव है मेंस में, वो 1850 से हमें पढ़ना है। इसलिए इसको ज़्यादा थोड़ा लाइटली से पढ़ लेना, एक बार समझ लेना है मुद्दा को कि इन्होंने ठीक है पहली बार बताया कि नेवल सुप्रीमेसी रखना चाहिए, मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में बताया, मेरी टाइम स्किल में बहुत सारे न्यू इन्वेंशन किए, न्यू इनोवेशन किए। और क्या इनका ये सिग्निफिकेंस है, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इम्पैक्ट। ये जो थे इन्होंने बहुत सारे चर्च बनाए, मिशनरी आए, बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन धर्म में बदलना चाहते थे वो यहाँ पर पेंटर बने, कार्वर बने, स्कल्प्टर बने। स्कल्प्टर मतलब स्कल्पचर बनाना, मूर्ति बनाना। कार्वर मतलब कार्विंग करना, जो जैसे काठ पर कुछ कार्व करके बनाना या दीवार में कुछ उस तरह से बनाना। तो ये पेंटर, कार्वर, स्कल्प्टर, और इस तरह से एक नया जो यूरोपियन आर्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। यूरोपियन आर्ट मतलब जो यूरोप में आर्ट हो रहा था, यूरोप में कैसे मूर्ति बनाया जाता था, कैसे पेंटिंग किया जाता था, इसको भारत में इंट्रोड्यूस करने वाले पुर्तगीज थे, क्योंकि ये पहला थे आने वाले, तो पहली बार यही तो इंट्रोड्यूस करेंगे, ये भी इनका है। फिर गोवा में फिलिग्री वर्क मतलब होता है कि जैसे गोल्ड का या सिल्वर का उस तरह से एक आर्टिस्टिक डिजाइन बनाना, जैसे फूल बना देना सिल्वर के मदद से, गोल्ड के मदद से, छोटा छोटा उसका पतला धागा लेकर, पतला गोल्डन तार लेकर, वायर लेकर उसको एक आकृति में बनाना, फ्लावर बनाना एक्सेट्रा। सो ये जो फिलिग्री वर्क है गोवा में, उसको भी पॉपुलर कौन किया, इसी के समय पॉपुलर हुआ, क्योंकि यही पहली बार आया। और गोवा हेडक्वार्टर किसका था, सेंटर किसका था, पुर्तगीज का। सो मोस्ट ऑफ द गोवन कल्चर इज रिलेटेड विथ व्हाट, विथ पुर्तगीज। गोवा में जो यूसीसी हमें आजादी से पहले से ही वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, किसके कारण, पुर्तगीज के कारण। गोवा में जो इतने कार्निवल्स होते हैं वो किसका दिया हुआ है, पुर्तगीज का दिया हुआ है। ब्राजील में भी इतने कार्निवल्स होते हैं गोवा के जैसा, क्योंकि दोनों जगह पुर्तगाल का राज था। तो ये भी जो गोवा में फिलिग्री वर्क है, द वर्क ऑफ सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द दीज पीपल। एग्रीकल्चर में क्या इंट्रोडक्शन किए, जैसे एग्रीकल्चर में टोबैको यानी जो खैनी होता है, ये इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। जो केसव नट होता है यानी कि जो काजू होता है, इन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इंप्रूव्ड वेराइटी जो कोकोनट है उनका इंप्रूव वेराइटी पुर्तगीज लाए भारत में। और पोटैटो और टमाटो भी भारत में लाए, यानी आलू हो, टमाटर हो, खैनी हो, ये केसू नट यानी कि जो काजू हो, कोकोनट हो, ये सब भी भारत में कौन लाए, पुर्तगाल लाए। ये इनका कंट्रीब्यूशन है। आइए एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। पहली बार क्या हुआ, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल ओटोमन टर्क के यहाँ चला गया, जिससे कि जो डायरेक्ट सी रूट था वो और बाधित हुआ, और ये देवर फोर्स्ड, यूरोपियंस वर फोर्स्ड टू फाइंड एन ओशियनिक रूट टुवर्ड्स इंडिया। 1494 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ तोरदेसिलास हुआ, ये साइन हुआ, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया कि जो स्पेन के लोग हैं वो वेस्ट जाएंगे
फ्रॉम जो इमेजिनरी लाइन खींचा गया था, और जो पुर्तगाल है वो ईस्ट की तरफ आएंगे। 1498 में क्या हुआ, वास्को ड गामा अराइव्स एट कलकत्ता, और इससे पहले 1487 में क्या हुआ था, बार्थोलोम्यू डियास केप ऑफ गुड होप तक आए थे। 1500 में क्या हुआ, पेड्रो अल्वारेज केवरल आए और फैक्ट्री बनाए कैलिकट में, हालांकि ये टेम्पोररी फैक्ट्री था। 1503 में फाइनली जाके फैक्ट्री बना जो कोचिन में बना। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगीज का पहला फैक्ट्री कहां बना, आप आंसर कोचिन दीजिएगा, कैलिकट नहीं दीजिएगा, और डेट पूछा तो 1503 दीजिएगा। इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि किताब में दिया हुआ रहता है कैलिकट, बट दिस इज जस्ट एंड टेम्पोररी फैक्ट्री टाइप का था, 10-20 जैसा था, वो परमानेंट स्ट्रक्चर था। इसलिए आंसर में जब भी पूछे कि पहला फैक्ट्री कहां बना, तो पहला फैक्ट्री कोचिन में बना और 1503 में बना। अच्छा ठीक है, 1505 में क्या हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए और पहली गवर्नर बनकर आए। 1510 में क्या हुआ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर कर लिया बीजापुर से। बीजापुर के सुल्तान कौन थे, आदिल शाह, ये भी याद रखना है। 1530 में क्या हुआ, ये कोचिन से गोवा की तरफ पुर्तगीज का जो कैपिटल था उसको शिफ्ट किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया, ये निनोडी कुन्हा के द्वारा किया गया। 1534 में बेसिन को छीन लिया गया। डेट याद रखना है, ये 1534 वाला नहीं, यहां तक जितना डेट है उसको याद रखना है। ये इसके बाद वाला डेट में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसे एक बार समझने के लिए। यहाँ इसके बाद इसके पहले वाला जितना था वो इंपॉर्टेंट है, उसको याद भी रखिए और उसको बार बार पढ़िए। इन नीचे वाला जितना भी डेट है इसको याद नहीं रखना है, बस एक बार पढ़ लेते हैं। 1537 में क्या हुआ, बहादुर शाह किल्ड कर दिए गए पुर्तगीज के द्वारा। 1580 में क्या हुआ कि रोडोल्फो और एक्वा विवा गए अकबर्स के कोर्ट में। 1612 में क्या हुआ, कैप्टन बेस्ट ने हरा दिया पुर्तगीज फ्लीट को सूरत में। इसको हम फिर से इंग्लिश में पढ़ेंगे, यानी इसको याद करना है, और खास करके जब इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो वहां बता देंगे कि इसको याद करना है। 1632 में क्या हुआ, मुगल्स ने कासिम खां को बोला कि हुगली को कैप्चर कर लीजिए, इसको भी याद नहीं करना है। 1739 में क्या हुआ, मराठा कैप्चर कर लिया सलसीट और बेसिन को। अभी हमने देखा कि गोवा के बगल में जब मराठा का उदय हुआ महाराष्ट्र में, तो उससे पुर्तगीज की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया, क्योंकि मराठा बहुत पावरफुल थे, गोरिल्ला वारफेयर में दक्ष थे, एडेप्ट थे, और दे कैप्चर्ड ए लोट ऑफ पार्ट्स ऑफ पुर्तगीज के बहुत सारा चीजों को उन्होंने छीना, कैप्चर किया बहुत सारी जगहों को। इससे पुर्तगीज की जो पावर थी उसमें कटौती हुई, उसमें हानि हुई। 1961 इस डेट आपको याद रखना है। 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकैप्चर्स गोवा, दमन एंड दीव, द लास्ट पुर्तगीज पोजेशंस। तो गोवा हो, दमन और दीव हो, ये सबको भारत ने यानी कि इंडिया ने कैप्चर कर लिया 1961 में। आपको बताना है कि ये कौन सा इसमें जो ऑपरेशन किया गया था, इस ऑपरेशन का क्या नाम है, आपको बताना है कि थ्रू विच ऑपरेशन इंडियन आर्मी कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम पुर्तगीज। ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा ऑपरेशन से इंडियन आर्मी ने गोवा को कैप्चर किया। और हमने क्या बोला था लेक्चर के शुरुआत में, जो इंट्रोडक्शन था उसी में बोला था कि पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया। पुर्तगीज क्या थे, पहले थे भारत में आने वाले। क्यों, क्योंकि ये 1498 में आए, और दूसरे जो आए वो 1505 में आए, डच। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये ऑर्डर भी अरेंज करने के लिए यूपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो जब हम पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे ऑर्डर क्या है। तो पहला जो आए वो पुर्तगीज है, दूसरा जो आए वो डच है, और इसमें लगभग 100 साल से ज्यादा 107 साल का गैप है। यानी कि फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वाज द पुर्तगीज थ्रू द डायरेक्ट ओशियन रूट। दूसरी है कि जो लास्ट यूरोपियन थे जो भारत छोड़ कर गए, वो भी पुर्तगीज है, क्योंकि 1500 ये देख रहे हैं 1961 में गोवा को हमने फिर से छीना पुर्तगीज से, और 1962 में गोवा हमारा पार्ट बना, और 1962 में ये पुर्तगीज भारत से रियल रूप से विदा हुए। तो ये जो पुर्तगीज थे, ये जो पहली बार आए, इतने ढीठ थे कि ये लास्ट थे यहाँ से जाने वाले। ब्रिटिश बाद में आए और पहले चले गए, 1947 में छोड़कर ब्रिटिश चले गए, और कुछ 4-5 साल के बाद फ्रेंच भी चले गए। लेकिन दिस पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया, एंड इट वाज आल्सो द लास्ट यूरोपियन पावर टू मूव आउट फ्रॉम द इंडिया। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हो गया। अगला लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि देखेंगे कि डच कैसे आए भारत में और इंग्लिश कैसे आए भारत में, और उसके बाद जब लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें फ्रेंच पढ़ेंगे, और फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में जो युद्ध हुआ वो पढ़ेंगे। फिर मुगल एम्पायर, जो लेटर मुगल एम्पायर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, क्योंकि हम कोशिश में है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ सीखने को मिले क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ याद हो, और आप ये नोट्स को अपना बाइबल मान लीजिए, और इस नोट से आप लगातार रिवीजन कीजिए, और विश्वास रखिए एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद ये नोट्स बनाया है, और कम से कम पीवाईक्यू को तो इसमें इंक्लूड करने का, पीवाईक्यू के हुई बेस बनाकर इस नोट्स को बनाया गया है, और एनसीईआरटी के बहुत सारा पॉइंट को इसमें मिलाया गया है। हालांकि आप स्पेक्ट्रम भी पढ़िएगा तो लगेगा नोट्स उससे भी मैक्सिमम चीज़ कवर हो रहा है। तो ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट है, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, और थोड़ा जो शुरुआती है मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा बोरिंग होता है, जैसे ये चैप्टर है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, जैसे लेटर मुगल्स पढ़ेंगे वो भी थोड़ा बोरिंग है। तो
तो लेकिन कुछ दिन के बाद ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा जब हम भारत के जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जाएंगे, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और उसको याद करना भी बहुत आसानी से होगा। जब हम इसको याद करने में सक्षम हो पा रहे हैं, अगर आपको याद हो रहा है क्लास में, तो आप सोचिए कि जब हम 1857 के बाद की क्रांति के बाद पढ़ेंगे या 1857 के बाद बारे में पढ़ेंगे या कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, तो कितना आसानी से हम उन चीज़ों को याद कर पाएंगे और कितना आसानी से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा शुरुआती कुछ लेक्चर थोड़ा बोरिंग है और फैक्ट पूरा फैक्चुअल है, और इसलिए बहुत सारा लेक्चर हमने देखा है यूट्यूब पर कि इन चीज़ों को कवर भी नहीं किया जाता है, खास करके बीपीएससी में। लेकिन हमने कवर करने की पूरा चीज़ कोशिश किया गया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि मॉडर्न हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में जिस भी लेक्चर को हम पढ़ाएं, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ाएं, उसमें आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आप यहाँ से पूरा नोट्स पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं, तो आपको कोई और किताब छूने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई और नोट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ से पढ़िए और फिर क्वेश्चन बनाइए, आप यूपीएससी तक का क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो पाएंगे। ये पूरा हमारा कोशिश है, इसलिए इसमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लग जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं पर थोड़ा सा ज़्यादा हमने इंक्लूड कर दिया है, थोड़ा और इसको कट कर सकते थे, पर क्योंकि हम आपको 100% देना चाहते हैं अपनी ओर से, इसलिए थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो इसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा। और हमारा लेक्चर इसी तरह से आप देखते रहिए और समझते रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए, मज़े में रहिए, टेंशन से मुक्त रहिए। और इसी के साथ आपको फिर से प्रणाम और बाय बाय।